Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today's session is about understanding the market or the marketplace. Um, इससे पहले कि I get into that, just let's just put this in context, right? और as we go through today's session, तो थोड़ा context और भी हमारा clear हो जाएगा कि ये कहाँ पे आता है. अच्छा, just to start off, I would ask everybody जिसके लिए possible है turn their cameras on. आज का सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, थोड़ा एक्सेलरेटेड पेस भी होगा. ऑब्वियसली, आई मीन एज वी टॉक्ड अबाउट दिस लास्ट टाइम कि दिस इज मोर लाइक ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो उसके अंदर जो है एक्सेलरेटेड है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं. हम चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अपनी भी क्लैरिटी के लिए, और ताकि चीज़ें भी हम जो है हम मैनेज कर सकें और उसको अपने बिजनेसेस पे सिंपल करके अप्लाई कर सकें. बट गेट अ गुड इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट सो दैट इज़ रेलिवेंट एंड इट्स एप्लीकेबल, राइट? So last वाला सेशन जो पहला था, that was more about where we stand in the whole picture. Because हमने ही चलाना है, हमने अपना विजन और मिशन क्लियर करना है, अलाइनमेंट करनी है, and then we have to make our impact. And what are our meaning of life and purpose, where we stand, and how can we have that motivation then, and only then can we have that motivation. अच्छा जी. So I'll just start. So बीच के अंदर जो है थोड़ा again सबको फोकस रखना पड़ेगा. I'll try if we can, then थोड़ी सी exercises कर लेंगे just to keep afloat and everybody here and focused. उसके लिए भी अच्छा होगा अगर कैमरा ऑन कर सके जो right. So okay, when we talk about the market, what comes to our mind? Please, क्या ख्याल आता है जब मार्केट का सोचते हैं? Consumer, people. So we see people. What else do we see in the picture? We see products, right? We see transportation happening. We see people providing other services. Hmm. Right? We see different vendors. We see sellers. We see buyers. And what's happening between the sellers and the buyers? Sa- Sale and purchase. Sale, purchase, dealing. So transactions. Right? So at the basic element, अगर हम business को break down करें, तो business is a transaction. जहाँ पे लोग values exchange कर रहे होते हैं. जी आसिफ भाई. You're on mute. Please unmute yourself. नहीं mute हुए में unmute कर लें. Asif bhai, you are muted. ठीक है, so I'll carry on until you can unmute, please. Okay. So what else is there? So imagine the world, right? The world is a marketplace, and in all this, there are people, right, who are exchanging these values. जो contracts कर रहे हैं, जो आपस में obligations, rights और duties establish कर रहे हैं आपस में. Then there are all these conversations happening in the marketplace. Some are about information, some are about how can I use this product, some are about what else is available. Right? Sometimes you go to the shop and you tell the shopkeeper your problem, यार मुझे ये मसला है तो मैंने ये करना है, तो वो he will give you options. आसिफ भाई, आपका माइक म्यूटेड है अगर आप बात कर रहे हैं माइक में, राइट? आई कैन सी. अच्छा, anyway. And then the people are exchanging all these conversations and messages and information, and there's this big machinery which is happening. And then we can imagine that this is happening between individuals, and there's a one-to-many relationship. Right? Everybody's talking to different people. They're all connected. At this point, हाँ जी, अब आ रही है आवाज़. चलें, आप thankfully we can hear you now. जी, आप बोलें, फिर उसके बाद I would like to share a video. जी आसिफ भाई, can you hear us? चलें, he'll be back. अच्छा, so I want everybody to look at this video. पहले तो मैं play करता हूँ तो kindly बता दें आवाज़ आ रही है. So I want everybody to look at this and tell me what they see in the video. Right?
no sound. Okay, how do I share computer sound? Oh, sorry. ये जो आपके सामने टास्क बार आ रही है ना, जहाँ पे माइक कैमरा बना हुआ है, उसके राइट पे 3 डॉट्स हैं, मोर ऑप्शंस। वहाँ पे जाके देखें सेटिंग्स में, या आपके पास, सिंस यू आर एन एडमिन, तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी शेयर स्क्रीन सिस्टम साउंड या कंप्यूटर साउंड की। करते हैं सिस्टम का ही रहा है डिफॉल्ट स्पीकर ऑडियो में जाके ना चेक कीजिए। Are you sharing a tab? Yeah, or are you sharing per seat? आइए बस अच्छा चलिए the sound isn't that important so we can just watch the video although it will be a little boring लेकिन फिर भी the sound isn't really इसमें कोई dialogue नहीं है वीडियो में so I'll just replay so just watch in the video and imagine some tune in your head we're all supposed to have some sound in our head right some song Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you sorry sorry मैं साउंड के चक्कर के अंदर ही कर गया अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, काइंडली मुझे बताइएगा फिर साउंड आ रहा है कि नहीं। प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। okay the sound isn't really that important बस वीडियो देखने की तरह so टाइम का भी थोड़ा सा है come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world, there's nothing to it.
बीच में आवाज आई थोड़ी सी नहीं Yes. हाँ, तो मैंने वो माइक हेडफोन के साथ लगाने की कोशिश की एनीवे सो डिड एनीबॉडी सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द वीडियो क्या था वीडियो में This basically he was doing his routine job and also a side business. side business okay so he was doing his job and he saw this word which he found questionable and then he went home and all of a sudden he had an idea that he could take something fresh and organic to the market and there was a hook there. What was the hook? How was he attracting the customers? By his tagline, cultivating. He put up a stall and there was a smell which attracted people, Oh, yes. right? So that's just something about entrepreneurship, right? That's I mean you can stumble across an idea anywhere. At the same time, so you have this idea which you need to seed. Like it's like cultivating a crop or a plant. अब उसको लगाते हैं, you have to look after it. पहले it takes a lot of input, and then it sprouts from the ground. Right now, once you cultivate it, तो ये farmer नहीं पता होता कि what his crop is going to yield tomorrow or not. In that sense, when we talk about entrepreneurship and strategy, and today's session is going to be about the market. How do we analyze this market? How do we understand what's going on? So जैसे हमने बात शुरू की कि it's about transactions, it's about people, it's about values का exchange, contracts, obligations. और generally the business हो रहा होता है कि offering होती है, कोई उसको accept करता है, and they pay for it. अब इसके अंदर today's session we're going to talk about certain lenses and tools जो हम हमारे कॉन्टेक्स्ट से, हमारे आइडिया से, हमारे बिजनेस प्लान के हिसाब से मार्केट को एनालाइज और उसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होते हैं एंड देन सब्सिक्वेंटली हमने अंडरस्टैंड कर लिया व्हाट डू वी डू विद इट सो व्हाट डू वी डू विद इट इज अंडर स्ट्रेटजी सो वी गोना टॉक अबाउट स्ट्रेटजी आल्सो अच्छा अब अगर हम देखें तो एक कन्वेंशनल स्ट्रेटजी है बिजनेस की जो मतलब एक आपके रनिंग बिजनेस है तो आप उसको मनूवर करने के लिए बेहतर करने के लिए क्या करते रहते हो और दूसरी इस कॉन्टेक्स्ट में जिस वक्त यू टेकिंग समथिंग न्यू टू द मार्केट राइट सो व्हाट द थिंग इज कि कन्वेंशनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नोन होती हैं राइट वी हैव दिस पास्ट परफॉर्मेंस वी हैव कंपेटिटर्स हु आर इन एक्शन हु आर डूइंग समथिंग वी कैन स्टडी देम वी कैन एनालाइज डिफरेंट रिपोर्ट्स सो वी नो what to do so there are many knowns in conventional strategy or business as an entrepreneurship के अंदर अभी कुछ बना नहीं होता तो कोई evidence नहीं है hard right and then talking about uncertainties as far as conventional business goes तो customer के responses होते हैं आपके पास उसके आप competitor ने therefore आप पहले जो business कर रहे हैं उन्होंने actions उसके क्या लिए वो भी होते हैं so you have all this historical data so there is some uncertainty. I mean, you don't know, but at the same time, there is the uncertainty is some, not all, not maximum, not minimum. As compared to entrepreneurship, there are many uncertainties, right? This is about how our product, whatever we're designing, is going to fit into the market. So we need to understand the market. The market we're talking about, कि लोग क्या हैं, transactions क्या हो रही हैं, किन values पे हो रही हैं, where is this happening, how are people connecting, how is it being delivered, how are they being hooked. Right? So we need to find that fit which is good for our solution. उसके बाद obviously it needs to be feasible so that we can actually do that business sustainably. How do we get that money to make this sustainability? How will the competition react? And then obviously what is our pitch? What is our brand? What is our persona? What is the message we are carrying? What are the values that we have? Right? And then we talk about unknown risks. So as far as conventional business strategy की बात है तो उसमें मिनिमल है क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में किस किस बेसिस पे हो रही है सो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल प्राइस इलास्टिक कहते हैं कि जी अगर मैं प्राइस चेंज करता हूँ तो वो उसकी डिमांड में कितना शिफ्ट चेंज आता है ये वाली बातें पता होती हैं whereas in entrepreneurship it's something new so there are many risks right there's little clarity कि क्या क्या और challenges नए आएंगे because this is like going in the uncharted world. So now the interesting thing is that as far as entrepreneurship is concerned,
there are a lot of ways to plan for a startup, and I mean, people have studied businesses or entrepreneurship and new businesses, especially last 3 decades के अंदर जो technology based businesses आए हैं और इतने scaled businesses हैं. So we've had the opportunity to study them and learn from them, right? And if we can learn from them, then it can be taught as well, right? So the idea here and the methodology which we are using and is mostly used दुनिया के अंदर is a learning based methodology. और हमारे में स्पेसिफिकली मीन मेथोडोलॉजी जिसके अंदर हम डिज़ाइन थिंकिंग को फॉलो कर रहे हैं, राइट? और हम डिस्कवरी ड्रिवन प्लानिंग भी डिस्कस करेंगे गोइंग अहेड कि क्या होता है. सो द प्रोसेस इज टू लर्न, बिल्ड, measure, learn again, keep on building, measuring, and this is a continuous cycle which keeps on going, right? So as far as when we learn, we get new ideas which are part of the process, and then we build and we code it into an MVP, we measure it, and then we have all these principles which we apply to take it into the market and keep on measuring it. So in design thinking, one of the main central core tools, is the business model canvas. जो एक पेज के अंदर आपको स्नैपशॉट दे देता है कि मेरे सब सारे डब्बे फिल हो गए. अब आप मेरे से पूछें तो द फर्स्ट टाइम आई स्टम्बल्ड ऑन द कैनवस, राइट, उससे पहले तक इट बी लाइक 10-12 साल से आई वाज वर्किंग, राइट. सो उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो गया ओवर ए डेकेड कि यू नो कि अच्छा ऑपरेशन कैसे चलाने, क्या क्या चीज़ें करनी है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का भी थोड़ा आइडिया हो जाता है. बट स्टिल आई ऑलवेज फेल्ट कि अच्छा कि एक स्नैपशॉट में कि क्या मैंने सारे डब्बे अपने चेक कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, एक चेक लिस्ट फॉर बिजनेस. And even the first 2-3 years I was teaching entrepreneurship, so I had this bunch of 13 questions which I called the business model. और उसके अंदर जो है, who is your customer, who will actually pay for your services, इस तरह के questions, I had put up a framework. And once I got familiar with design thinking, so this is I completely just migrated onto the system, जो कि बहुत एक snapshots के अंदर आपको focus tools के साथ अपने business के lens देता है आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए. बिजनेस मॉडल कैनवस बहुत सेंट्रल इस तरह है कि वो इसके पीछे वाली सारी चीज़ें जो रिसर्च के टूल्स हैं और इसके आगे वाले सारे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल और इस तरह के टूल्स हैं, उनका बीच सेंटर कोर है ये. एंड दैट इज व्हाट योर बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू बी द एंकर और द बॉडी और द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस, राइट. लेकिन कि मॉडल क्या है हमारा, और मॉडल के स्नैपशॉट देखने के अंदर हम जब बिजनेस डिजाइन थिंकिंग के अंदर बिजनेस मॉडल कैनवस करेंगे, we'll get into the details of it, right? But generally value proposition, customer relationship, revenue streams, partners आपके कौन है, this is the sort of stuff that business model canvas will cover. Now business model canvas जो है entrepreneurial process का एक central part है, यानी iteration का, learn, ideate, build, measure, right? जो एक continuous relearn और cycle अभी हमने बात की है. अब ये continuous cycle चलता रहता है design thinking के through, right? And if you were on this और आप और learning करके अपने प्रोडक्ट को बेहतर, सर्विसेज को बेहतर करते रहेंगे, that is one way you can go about it, and you must go about this way to keep on learning and making your product better. However, एक continuous अगर cycle लग जाएगा तो actually हम business कब करेंगे अगर बनाते रहेंगे, प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, उसको reiterate करते रहेंगे. So उसके लिए एक और टूल यूज होता है जिसको कहते हैं डिस्कवरी ड्रिवन प्लानिंग. So there are like 2 knobs to control this card. ठीक है ना. डिजाइन थिंकिंग के साथ हम लर्निंग और उसकी मॉडलिंग और बिल्डिंग करते रहते हैं, उसके रीलर्निंग और बेटर कीप ऑन मेकिंग बेटर. डिस्कवरी ड्रिवन प्लानिंग के अंदर हम लोग अपनी अजम्पशंस और माइलस्टोन्स सेट करके यहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर से कई चीज़ों और पॉइंट्स को टेस्ट करते रहते हैं ताकि हमारा बिजनेस भी स्ट्रेटेजिकली आगे चलता और बनता रहे. विल गेट इनटू दिस लेटर. So but now here talking about markets and competitors and making our business, then how is it that how do we get an advantage, right, to make our to के risk कम भी करने के लिए और success को therefore ensure करने के लिए क्या advantage आ सकते हैं. एक तो obviously मतलब illegal कोई काम हो या regulated monopoly किसी ने रखी हो, ठीक है ना, एक ही seller है पूरी मार्केट में, तो वो उसको एक certain advantage हो जाता है. These are unfair trade practices and illegal also, so can't really go that way. या तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं इकोनॉमी तो स्केल ऐसी कर रहा हूँ कि मुझे पर यूनिट बड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं इतना चीप कर लेता हूँ और इतना फैला के कर लेता हूँ कि जी मैं तो फिलहाल नहीं हूँ, ठीक है ना, तो भाई मैं क्या करूँ. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर थर्ड ऑप्शन व्हिच इज डूइंग समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल, व्हिच इज बेटर एंड इट्स आल्सो डिफरेंट, राइट. एंड दिस इज the way for the entrepreneur.
एंड हियर हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सर्विस को, जिसमें कोई ऐसी रेयर कैपेबिलिटी या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और फैक्टर लेके आते हैं जो हमें सेटिस्फाइड करेगा, राइट? एंड दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर फोकसिंग ऑन. Now, to create this real value, there are three questions we have to ask. The first one is the need real? मुझे तो लगता हो, ठीक है ना, कि जी एक सोप के साथ कोई वो ऐसा चीज होनी चाहिए मैं उसको शावर पे हैंग कर लूँ. Maybe people don't find that need and they're used to putting it on a samdani. I don't know. So is the need real or is it just my head? Okay, the solution which I've come up with, ठीक है ना, मसला मेरा क्या actually, because you need to get into it. Why do I want the sabundani on the wall and not on the floor? By the way, I just came up with this. There's no actual argument going on about this. So, does this really meet my need? Maybe it's because कि मैं उसमें समझता हूँ उसमें पड़ा रहता है ना तो गीला हो जाता है, नीचे साबुन खराब हो जाता है, हैंगिंग होगा तो ड्रिप कर जाएगा, ड्राई रहेगा तो बेहतर रहेगा. Well, the other question is the customer willing to pay to migrate to this? And इसके अंदर obviously when we talk about paying and the customer paying, we're not just talking about the money they're going to pay, but obviously for the shift of habit, which is more crucial. People pay extra to stick to their habit a lot of times, especially when we talk about adaptive curves, the late majority होती है उनको खींच के लाना पड़ता है. So the cost to shifting this habit or the way of life, right, is it worth it? And obviously is this worth for us, because जो हम price charge कर सकते हैं customer को वो हमारी cost से कम होनी चाहिए. Now, so when we talk about innovation and building this new product or value or service or value for this customer, right, and bringing innovation to the market, there are two ways to go about it. There is pull and then there is the push. So pull के अंदर, well, first we cover कि how is it that how can we solve this particular problem. So you're putting it in, searching for solution, and then you see कि अच्छा ये सारे possible solutions हैं, तो कौन सा जो है सबसे अट्रैक्टिव कॉस्ट पे बेस्ट सोल्यूशन जो है मैं लेके जाऊँ. ठीक है ना. इनोवेशन को देयरफॉर जब हम पुल इनोवेशन जो कहते हैं उसके अंदर सोल्यूशन के हिसाब से जो हमने वो बनाई, वो कॉस्ट के अंदर सबसे अट्रैक्टिव कौन सा सोल्यूशन है उसको मैं वैल्यू प्रोपोजिशन दूँ. अब मैंने ये क्रिएट कर लिया एक सोल्यूशन. अब ये भी हो सकता है कि ये कहीं और भी यूज हो सकता हो, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट हो गई, वो इन्वेंट हुई, फर्ज किया किसी गांव में, मैं रैंडम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी उन्होंने पानी को खींचना था तो उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट कर ली. नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे थॉट कि अच्छा ये मोटर ये चलाती है चीजें, तो इसको टायर पे लगा के देखते हैं, ठीक है ना. सो फर्स्ट वाज द पुल एंड द सेकंड इज द पुश. वी आर टेकिंग द इनोवेशन एंड देन वी आर आल्सो अप्लाइंग इट टू डिफरेंट थिंग्स. नाउ हमने ये बात की कि मार्केट प्लेस है, लोग हैं, वैल्यूज है, लॉट ऑफ पीपल वन टू मेनी रिलेशनशिप के अंदर या मेनी टू मेनी रादर रिलेशनशिप के अंदर सारे वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर और द सोप हैंगर, राइट, जब हम मार्केट में लेके जाएंगे तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो हम एनकाउंटर करेंगे. मतलब मार्केट व्हेन वी टॉक इन दिस सेंस ऑफ द कंज्यूमर मार्केट, द होल वर्ल्ड इज द कंज्यूमर मार्केट. सो एनीबॉडी हु यूजेस अ सोप, एनीबॉडी हु मे हैव अ बाइक और नीड अ टर्बाइन, ठीक है ना, देयर आर पोटेंशियल मार्केट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग भी होते हैं जिनको हम ग्रुप बाय ग्रुप एक्चुअली हम जो है ना जिनसे इंटरेक्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज इंटरेक्ट करेंगे. सबसे पहले तो ना कुछ एंथुसियास्ट्स होते हैं, इनोवेटर्स कहते हैं इनको, ठीक है ना. दे लव टू वर्क विद न्यू थिंग, दे वांट टू बी द इन थिंग, दे वांट टू हैव दैट न्यू पॉश थिंग, द न्यू गैजेट, द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट. देयर इज अ परसेंटेज ऑफ दीस पीपल. देन इनके एक अगले वाला स्टेप आता है जिनको कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स. अच्छा, पहले वाले जो इनोवेटर्स होते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ योर बीटा टेस्टर. दे आर विलिंग टू वर्क विद द फॉल्ट्स, बट दे वांट समथिंग न्यू, राइट. दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड दे कीप ऑन लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, so they may migrate also कल को. Then the second group are early adapters. अब आपने बीटा से जो आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट आ गया, बेसिक मिनिमम फीचर उसकी चल रही है, ठीक. अब ये विजनरीज ऐसे लोग होते हैं जो कि देखते हैं कि अच्छा ये वाकई इस वाली टेक्नोलॉजी और इसका ये फायदा होगा, कल को सबने अडेप्ट करनी है, सो दे स्टार्ट अडेप्टिंग इट. नाउ वंस इतने को ग्रुप ने अडॉप्ट कर लिया और हमारे मार्केट के अंदर एक यूज और हैबिट डेवलप होना शुरू हो गया, तो फिर प्रैग्मेटिस्ट, द पीपल हु take decisions on what they feel or see as practical basis, then they will start adapting this. These are the people we encounter them. So how do we sell to these people step by step? क्योंकि उनको हमारा different
कोई वैल्यू प्रोपोजिशन, नैरेटिव, कोई स्पीच, कोई ब्रांड, कोई एक्सपीरियंस, कोई रीज़न फॉर यूजिंग आवर प्रोडक्ट होगा, और अगले वाला किसी और रीज़न की वजह से भी होगा, राइट। उसके बाद व्हेन वी गो टू द बॉटम ऑफ द कर्व, द गोल्डन हाफ दैट यू सी, तो वो ऐसे लोग हैं जिनको पुश करना पड़ता है, ठीक है ना, थोड़ा ज़रा कोई नई चीज़ या चेंज करने के लिए, और एंड में जाके स्केप्टिक्स आते हैं, और इनको इन अदर वर्ड्स लैगर्ड्स भी कहते हैं, who wait, or actually at times you have to actually pay for them to adapt it. They're very resistant to change. ठीक है ना? So once you look at innovators, there's a sort of rhetoric you hear about innovators is, it's something new to play with. Then we talk about early adapters. They're like the new kid, and that's what they want. The new watch, the new iPhone, and then यहाँ जो अर्ली अडॉप्टर्स है, वहाँ से मेजॉरिटी के अंदर जाने का एक ब्रिजिंग गैप होता है, जिसके अंदर यू फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु कम फॉर इंटरेस्ट बट दे विल आल्सो फॉल आउट। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल बिजनेस। ये ग्रोथ की स्टेज पे हमारा जब स्केलिंग को हिट करते हैं ना, वहाँ पे ये वाली आते हैं। तो वहाँ पे हमारी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, हमारी ब्रांडिंग क्या होती है, हमारे मॉडल कितना हमारा अच्छा लर्न बेसिस पे हमने टेस्ट किया हुआ है, वैलिडेशंस किए हुए हैं, और आगे लेके चलते हैं। दिस मैटर्स अ लॉट, right? And now once you go to the top of the curve, then those are the people who actually now they're becoming main, the product or service or the habit is becoming mainstream now. They see कि इसके वाकई फायदे हैं, लोग इतने हैं कि इसको अडॉप्ट कर लिया, so now they also start jumping in. The late adapters, the late majority जिसको कहते हैं, जो second, जो right वाला curve है, बिल्कुल center of the curve से बिल्कुल right वाला half है, they're mildly skeptical, but they say कि अच्छा ठीक है, सब ने कर लिया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब हम भी इस पे आ जाते हैं। So how do you get those people to buy in at that step, right? Okay, so and there are different ways to use the adapter curve, right? Adapter curve एक लेंस है। अब अगर आप ये देखें, अच्छा इसमें परसेंटेजेस का भी थोड़ा चक्कर है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू मच इनटू द परसेंटेजेस ऑफ अडैप्टर कर्व, बट एक जो जनरल बेल कर्व होता है, और इसको बेल कर्व कहते हैं, जो इस तरह ऊपर से नीचे जाता है, राइट। 50% के अंदर इसका मिड आता है, और बाकी पे साइड्स पे होते हैं। सो इनोवेटर्स अगर हम देखें तो इनोवेटर्स अबाउट 2.5% टिपिकली होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, whereas early adapters जो है, they are about 13.5%, right? 2.5% and 13.5% make up 16%. और मेजॉरिटी जो है वो 16 to 84% के बीच में आती है, राइट। सो व्हाट दैट मींस इज कि 32% ऑफ द मार्केट, जो दोनों साइड 16% कर्व की है, वो आपकी मेजॉरिटी नहीं है। आपकी मेजॉरिटी देयरफॉर डिफाइंड होती है 68% ऑफ द मार्केट से, 32 प्लस 68, सो 68% जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अंदर होती है। तो जब हम सेगमेंट करेंगे, सेगमेंट्स की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, सेगमेंट के अंदर कितने हैं मेंबर्स, उनका पोटेंशियल क्या है डिमांड में, तो तब भी ये वाली बात माइंड में रखनी होगी कि मेजॉरिटी हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम देखा जाए, ब्रांड परसेप्शन is also very relevant here, right? Like, how does the customer or the people view our product or our brand or our business? Who are we and what do we stand for? So Netflix, Apple Music, those are sort of brands, innovators, जो है वो basically they jumped on them, right? And now you also find more innovators on these platforms, as compared to LinkedIn, जो है वो it's just slightly on the lower side of the innovator curve and towards the early adapter. So this curve basically this way, to see the curve this way, this shows कि हर business जो है इस वक्त अपने adaptation curve पे कहाँ खड़ा है, right? So Netflix अभी still considers कि it's in the innovators. ये actually थोड़ा सा पुराना है, I think 2-3 years. I think Corona has probably driven Netflix from here to early adopters का chasm, right? As compared to Facebook is at its early majority and nearing its peak, because they consider कि जी सब जो डिजिटली एक्सेस है जिन लोगों के पास, वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है। सो दे प्रॉब्ली कैलकुलेट पीपल एट 6 billion and they're probably around 3.5 billion right now. So that's why you see Facebook in its early majority stage right now, right? So this way हर जो प्लेटफॉर्म है वो अपने कर्व से आगे से एंड तक 100% तक जाएगा, right? Burger market is completely saturated.
right? Water is a need for everybody. Food, water, air, right? So there, that's why it's 100%. Everybody knows कि जी खाना पीना चाहिए. They've adapted. We've bought into this thing कि जी हमें खाना पीना और सांस लेना चाहिए. So we are 100% bought into. Doesn't matter. We need it. We must do it. So okay. So you have again just having a look at this concept of the adaptive curve and some other words. So you have enthusiasts, then you have visionaries, pragmatists, conservatives, and skeptics, right? And once I share the file you can read कि इनके rhetoric किस तरह का जाता है. अच्छा जी, अब this is Roger's version of the bell curve. Right? Roger considers, so for example, Facebook as being no worries, possibly. Okay, so Roger considers TV, everybody has TV, so we're there. With the newspaper also the saturation language. अब बहुत ही कम वो लोग हैं जो जिनको बहुत ही मुश्किल है न्यूज़पेपर से हटाना, वो नहीं आ रहे, बाकी तो सारे पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर. मतलब अब डिजिटली पढ़ रहे हैं, they're off the newspaper. So you can also have a look at these brands and think about them. Why do you think that they should stand at a certain stage of their adaptive curve? उनके टारगेट मार्केट कौन सी है एंड देयरफॉर उसके साथ से नंबर क्या है और ये अभी तक क्या अपने आप को परसीव कर रहे हैं, उन्हें अचीव कर लिया तो यहाँ पे प्लेस होते हैं कर्व के. एंड देयरफॉर उनके मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या हैं अगले वाले स्टेप और करंट मार्केट और उसके अगले वाले मार्केट के लिए. और जब हम आगे मार्केटिंग की बात करेंगे तो जो पीछे रह गए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक अगर center of the bell curve है, so जो early adapters का है, what does Facebook do? Does it not market to them anymore? Does it just okay, we've achieved these customers, let it go, आगे देखो? Is that it? Or are there other things that they must do to retain them, or even nurture them, or grow with them, or even monetize them? इसमें customer lifetime values जब हम financials पे भी जाएंगे, so we'll talk about CLV also. So there's some more information about the bell curve. So now there is a concept. There are two concepts I would like to introduce here. There is of the beachheads and the lead customers, right? Beachheads वो लोग हैं जो कि अब हम उन लोगों से टच बेस कर रहे हैं. लीड कस्टमर्स वो हैं जो ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो हमें इवन और लोगों के साथ एक्सेस देते हैं हमारे कस्टमर बेस के. So let's just take a breather here and digest अभी तक जो बात हुई है. ठीक है ना? So अभी तक हमने adaptive curve को देखा है. So any questions or thoughts about this? No questions. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Thankfully. अच्छा मैं वो ऐड कर दूं जो मैं ऐड करना चाह रहा था. जी प्लीज. वो इंटरेस्टिंग सी एक जब भी आप मार्केट प्लेस को देखें ना तो मैं बड़े शुरू में मैंने एक किताब पढ़ी थी कॉल्ड द आर्ट ऑफ वॉर, वो सन त्सू की. मार्केट इज योर टेरेन एंड द एग्जिस्टिंग competition are your enemies. Not virtual enemies, but that's how you perceive them. तो वो बड़ी अच्छी सी एक उसकी एडेप्टेशन बनती है आर्ट ऑफ वॉर की नॉर्मल बिजनेस के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं. That's all I wanted to add at that point in time. Thank you. I think Sun Tzu has a lot of wisdom और मतलब मैंने तो छोटे से बड़े शौक थे इस तरह की चीज़ों को. So I think it's true. And a lot of people, see it as a battleground. You're fighting for every rupee and every transaction, every customer, and a lot of Yes. there's also this economic war and corporate wars. At the same time, once we talk about entrepreneurial strategy, and this is relevant in this sense कि हम adapter curve की बात कर रहे हैं कि step by step हमें कौन से लोग मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं. As far as entrepreneurial strategy is concerned, you also need to decide step by step, right? कि आपके collaborative होंगे कई लोग या आपके competitor होंगे. A lot of businesses start out as collaborators, but they have in mind that we are eventually going to become their competitors. Or they might start out as competitors and they become collaborators. So Kareem, for example, right, is a great example for a competition which turned into a collaborator, right? And in that sense, हमारी entrepreneurial strategy किस point पे किन के साथ क्या है,
और a lot of times for a lot of businesses, especially in digital age के अंदर, sales partnerships make a lot of sense. So how do we see our business? How is our product to market fit? और ये आज का बड़ा relevant point है, क्योंकि जब when we do the competitive analysis table and those measures how to look at our competitors, we'll understand how positioning works and how we might take advantage of this. So now with these thoughts, and thank you Asaf for those thoughts, and because so you know how we take whether we when the battle is on, how we take it. I think Senzu would have a lot of wisdom to add to that. When we have collaboration, I think something like a care and growth formula या फिर Napoleon Hill वाली जो mastermind relationships की बात है, वो that would also help. So you really need to pick. और networking की बड़ी बात है. And you know, one of the core services, that's why at Inspire we say is networking. So what we want is to connect you with the right, real, relevant people who have a good reach also, right? So उसके बारे में we'll talk about it. So anyway, so now when we're talking about this entrepreneurial deal, you know, we need to. This is about something new, which is risky. There are uncertainties. कस्टमर भी स्टेप बाय स्टेप क्यों मिलेंगे, क्या कर रहे हैं, क्यों यूज़ करेंगे हमारा प्रोडक्ट, किस तरह किए हैं, क्यों क्या सोच रहे हैं, राइट? सो ये वाले सारे क्वेश्चंस व्हेन वी take to the market. So to develop this opportunity with this idea which we've come up with, or this goal or vision which we have to make our impact, there are some key questions we can ask. The first one, as we said, पहले भी बात की कि need real होनी चाहिए. So how significant is the need? How many potential customers have this real need, and how deeply is it the pain, you know, which your solution is going to solve? Is it like migraine के level की या फिर bleeding wound है, right? Is it fatal or is it just an itch? How effective is the solution going to be in addressing that specific need or the pain point of the customer? Right? Is it going to have a vitamin pill, you know, which is good, I have it, you know, I stay a little healthier. As compared to I have this real pain which I need critically solved, right? Then obviously the question of the how sustainable and viable, or if it is going to be viable, is where there will be a large gross margin. Are they willing and are they able to pay us what we need or want them to pay? Is it cost efficient as far as the solution is concerned? Or competition kitna hai कि how much is the risk and what can I do here? Because again, changing a customer's habit is also different. If I'm buying a certain toothpaste, I will keep on buying it unless I feel this real need to change. How hard will it be to get new customers on board? Can I identify them easily or in the deep dark? You know, sometimes we can put a campaign on Facebook and put on the interest in हमारे persona के साथ बिल्कुल वो match करता है. So we find out कि अच्छा digital Facebook पे कितने वो लोग हैं, तो हमारी reach Facebook के through इस persona के around कितनी हो सकती है. Or do we not have the statistics? पाकिस्तान में for example there's a big gap in data, right? There's a big blank कि लोग migrate कितने करते हैं, economic उनके हालात क्या हैं. Even the economy is a lot in the grey or unaccounted, so therefore there's a lot of grey. So how many real people are paying for this something? And how do we actually reach them? Do we reach them digitally? Do we reach them through people, networks, through placements? How do we communicate that value which we're trying to propose to them? And then we also need to understand if we have the right or the best team to do what it's going to take to be done. Or do I need to build this team? Or do we need to build this team? What are the resources? What is the capital? Does this align with our goals? Because this is going to be a very painful process at times, very challenging one. So, you know, our alignment to success philosophy is very important to be aligned with this. Now, what we do have, हमने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ illegal कर लें या तो monopoly को gain कर लें, इस तरह की वो हम कर नहीं सकते. ठीक है ना, बहुत बड़े businesses हमारे पास है नहीं कि हम दया करें पैसे लौटाते रहें फिर देखें क्या होता है क्या नहीं होता. हाँ, ये कर सकते हैं हम right value और right learning के साथ जो है we build something. And here when we talk about it, the biggest one of the protective role of the complementary asset. जो complementary asset होते हैं जो हमारे ये mission करने में हमें support देगा, right? The biggest thing is, and these assets are those assets necessary to translate an innovation into commercial norm, like marketing हो गया, distribution हो गया. You know, essentially what you guys in that sense have come to Inspire looking for, right? You need the specialized help.
Maybe you need to be connected with a manufacturer. Maybe you need help with marketing. Maybe you need to understand how the step is going to work step by step. How do I actually finance this? So this is complementary asset. This knowledge is going to be the complementary asset on your mission. And you need to be very authentic and real with them, and you need to understand that these are going to really help you. You need to hold them tightly. ठीक है ना? And then you need to find those things which are unique to you और आपके competitor के पास ना, so that you can create that advantage with yourself in this real world scenario, right? So now once you build this reputation, this is also an asset of yours. A Facebook page which has good following, that is an asset of yours. A sales partnership where you can place your product somewhere and people can buy it from there, that's an asset that you own. So these are these legal intangible assets also. You might have a skill which you're great at negotiating a great deal, that's an asset. If that's in your team, that is a complementing asset to your main business, right? And so as far as strategy is concerned, how do we go about this? How do we make success happen? In this entrepreneurship, this new risk-laden, uncertain world, there are at least three charted out strategies. या वैल्यू चेन है, या डिसरप्शन कर रहे होंगे, या हम ब्लू ओशन कर रहे होंगे. वैल्यू चेन के अंदर जो ऑलरेडी जिस तरह से या कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है, या उसको डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, या लेट्स से कि आप फार्मर टू B2B डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, सो आप क्या कर रहे हैं? आप वैल्यू चेन एनहांस कर रहे हैं, bringing a bigger, better product or service to market. That's it, right? So an example of this is Foxconn, which was, I think, live TV, right, as compared on the go on your phone. So it's how people access the mass media, as compared to disrupting the habit, or how this people are accessing us, or addressing a certain pain point, or accessing a certain value, right? When we disrupt something, what we see is कि जो existing chain है, उसको हम इस तरह कर देते हैं कि वर्क फ्लोज ही कम्प्लीटली उसका चेंज हो जाता है, और कंपटीशन के साथ अब जो है उसको कंपेयर नहीं कर सकते. सो इफ आई हैव टू गो इनटू द सिनेमा टू वॉच अ मूवी, और आई हैव टू गो टू अ शॉप टू बोरो अ मूवी एंड कम होम एंड देन वॉच इट, और यहाँ पे सिनेमा में जाके देखें, हियर आई हैव इट एट होम. सो नेटफ्लिक्स चेंज द वे आई एम एक्सेसिंग पर्सनलाइज्ड मीडिया कंटेंट, मूवी एंड टीवी सीरीज कंटेंट. अच्छा, कई दफ़े अब जो स्पेशली नई टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कई मार्केट्स ही नई क्रिएट हो रही है. Airbnb फॉर एग्जांपल जिस वक्त आया, सो इट एक्टिवेटेड सर्टेन स्पेसेस जो पहले जो है रेंटल के लिए अवेलेबल नहीं थी, राइट? सो पहले जो है रेंटल के लिए गेस्ट हाउसेस थे, होटल्स थे, किसी ने जो है इस तरह का अपना पर्सनल गेस्ट हाउस खोले हुए हैं, स्मॉल रूम्स दे दिए हुए हैं. ऑल ऑफ अ सडन एनीबडी कुड पुट देयर एम्प्टी रूम onto the marketplace. So all of a sudden supply is ज़्यादा हो गई, and all of a sudden all these people who thought that they couldn't afford or they didn't have options, या कोई मिल नहीं रही options, all of a sudden buyer भी ज़्यादा हो गए. Now it's cheaper, now it's easier to connect, and there are so many options, so there are more people now entering that specific product or service का marketplace as compared to they were before. So ये नई market, it's same thing with Uber. जिन लोगों की गाड़ियाँ थी वो टैक्सी पहले नहीं थी, वो टैक्सी बन गई. जो लोग टैक्सी पे करके नहीं करते थे, देर नाउ कार फॉर हायर नहीं करते थे, राइड फॉर हायर या मोबिलिटी फॉर हायर नहीं करते थे, वो कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड ब्लू ओशन, वेयर यू क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स. सो आइदर वी मेक एडिंग एनहांसिंग द वैल्यू चेन, या हम डिसरप्ट कर देते हैं हाउ द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय द कंज्यूमर, या फिर हम नए कंज्यूमर्स और सेलर्स और बायर्स को जो है एकदम नई मार्केट्स क्रिएट करके उनको अपने मार्केट में ले आते हैं. ठीक है ना? So now, sir, जी जी, so talking about blue ocean, you mentioned that कि वो gray area होता है इतने competition में and stuff like that. But over time, let's say कि competition बढ़ जाता है, तो like काफी सारी sharks आ जाती हैं, and they just try to occupy a piece of the big pie. तो फिर हम उनको किस तरीके से, मतलब what should be our अभी ना हम strategy? आगे we're going to talk about thank you Kamil, that's a good question, a very relevant one also.
पहली बात तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, एक सेकंड मूवर एडवांटेज होता है, राइट? एंड वंस वी गो इनटू द मार्केट, ये गो टू मार्केट का थोड़ा ज़रा पार्ट है। आज हम इस वाली बात की थोड़ी सी बात करेंगे आगे जब कंपेटिटर एनालिसिस टेबल की बात करेंगे। तो आई जस्ट लाइक टू मूव ऑन सो दैट वी कैन कीप पेस। आप ये क्वेश्चन ये वाला जो है होल्ड करो, जब हम गो टू मार्केट भी करेंगे तो दिस विल यू विल सी कि हाउ दिस कम्स बैक। आज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट इज अभी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड नाउ व्हाट इज द थिंग। तो आज जो टूल्स सेंसेस जो हम बात कर रहे हैं, what do we do to understand the market, ठीक है? और उसके अंदर हम जो है क्या strategies थोड़ी सी explore कर रहे हैं, हमने क्या करना है, because your question is going, it needs more detail than I can give right now because of time. Okay, okay, sir. Okay. So the first typical thing to do is, do a SWOT analysis. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats that exist, right? Or S or W is a SWOT. SW is SWOT का, that's internal, right? It gives what are the internal factors that give you an advantage, and what are the internal factors that work to your disadvantage, right? Now you can do this for your idea and yourself. ये दोनों मिला के SWOT मिलता है, right? जब भी हमने बात की जो आपके लर्निंग बेस्ड हमारा एंटरप्रेन्योरियल मेथड अब दुनिया के अंदर है, उसके अंदर क्योंकि हम टूल्स भी अप्लाई करते हैं, लेंसेज भी अप्लाई करते हैं और लर्न करके बेहतर करते हैं, एंड दैट हैज टू, एंड हमारे पर्सनल जो स्किल्स हैं, कोई नॉलेज है, कोई नेगोशिएशन स्किल हो गए, मार्केटिंग के हो गए, कोई में एक्सेस है कहीं, दोज आर आल्सो एसेट्स व्हिच वी ब्रिंग टू द बिजनेस और द आइडिया, राइट? सो दीज आर इंटरनल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. Then there are certain external factors which pose a threat, right? Or which create these opportunities for us. So, for example, Corona, COVID के साथ, I would like to hear कि COVID के साथ what are some of the opportunities for, let's say, Uber, ठीक है ना? What are the opportunities or threats that Corona created? For Uber, it created food delivery opportunity, and threat was to existing ride-sharing platform that they were already operating. So in Corona time, they saw like multiple factor growth in food delivery, Uber Eats. So another example that just came to my mind. So over the last 2 decades, mobile companies turned into data companies, and now they're turning into banks. Yes. Do you understand that? पहले मोबाइल कंपनी थी ना, फिर वो डेटा कंपनी बनी, अब वो बैंक्स बन रहे हैं, ठीक है ना? सुपर ऐप भी है जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस और आपका सब कुछ आ रहा है, राइट? So what they've done is they have pivoted and they've kept up with a lot of things, and they understand कि ये एक्सटर्नल जो चीजें हो रही हैं इसमें अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और थ्रेट्स भी क्या होंगे. एग्जिस्टिंग बिजनेस को उन्होंने रखने के लिए बंडल्स ऑफर कर दिए, ठीक है ना? मोबाइल के सेल्यूलर यूज है जब भी हो कोई ना कोई, एज कम्पेयर टू डेटा के लिए. जी जी sure. Sorry to interrupt. Another example is Robinhood. It's a US-based company where you could buy online stocks. So they saw opportunity in over time that people were at home. They had free money, spare money to invest somewhere. So they provided an opportunity that you do not need a multiple thousand, $100 account for investing. Just you can start with a bare minimum of $100. Absolutely. So they saw exponential growth in these times. Absolutely. And that is again to know this is about understanding the market and understanding your customer. So today's session is understanding the market. Next one is going to be understanding the customer. और यहाँ पे again we're covering these lenses and tools which we can use to better analyze हमारे perspective और idea और जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए how the situation is and how do we then strategize about it. Thank you Asif bhai, and today we are going to cover TAOs inshallah. ठीक है ना? तो strengths and weaknesses के examples of brand reputation, ठीक है ना? Access, good or bad brand reputation, either way is a strength or a weakness. Access to skilled staff is a strength or a weakness. Culture, industry relationships, location. And we'll talk about external factors. They're like how many alternatives are available for the solution which our product or service is providing. What is the demand like? How is it shifting? What is the availability of finance for this business? Also my buyer के जो है वो let's say कि buying power कितनी है. कोरोना हुआ, बिजनेसेस कम हुए तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट हुआ क्योंकि कस्टमर की बाइंग पावर उनकी कम होगी. कॉस्ट ऑफ मटेरियल किस तरह शिफ्ट होती है, पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं. So therefore we have the strengths, weaknesses, opportunities and threats for our businesses.
Now I'll share the slides so you guys can read up on this. There are a plethora of videos also available, so I encourage everybody to watch those. But keep it simple. Don't overcomplicate things for yourself. Strengths, weaknesses internal है हमारे साथ, हमारे आइडिया के साथ रिलेट किए. बाहर वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटी जो थ्रेट्स के एग्जिस्ट करते हैं. Those are the 4 things. Now, so adaptive curve, SWOT, and now we come to PEST, which may also be कुछ pestal भी होता है, but we're just doing the basics here. So PEST के अंदर political factors, economic factors, दो social factors या फिर technological factors जो कि हमारे business या idea या फिर जो हम market की बात कर रहे हैं. So when we talk about, अभी तक तो हमने बात की overall market की, right? कि लोग हैं, values हैं, products हैं, services हैं. जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज की मार्केट की, फॉर एग्जांपल द चीज, ठीक है ना, तो इट्स ऑल द पीपल हु हैव चीज, राइट, लाइक खाने वाला पनीर लाइक चीज, राइट, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, चीज. सो इट्स ऑल द पीपल हु आर सेलिंग और बाइंग द चीज, and for some businesses also the potential buyers or the potential sellers, right? This is how we map the market. So लेकिन हम particular product या service या good की बात करेंगे तो then we're talking about those people related to it instead of the whole world. The whole world is also a market. But particular चीज की market, motorcycle की market, कुल्फियों की market, laptops की market, used laptops की market, tablets की market, ठीक है, computer accessories की market. So you're different. So we're talking about the buyers and the sellers and the transactions happening, like the value being exchanged. Where is it happening? All of those things. So इनको इस specific market को कौन से political, economic, social या technological factors affect करते हैं? That is another tool which we use to figure out कि हमारे product की service के साथ क्या होगा. ठीक है, so हमें पता लग गया कि हमारे idea कि क्या strengths, values हैं, क्या opportunities और threats हैं market के उसके अंदर. And then what are those factors जो कि इस demand को, supply, need और transactions को shape करते हैं या influence करते हैं. अच्छा, so obviously ये कुछ forces हैं जो influence कर रही हैं, right? So ये तो political factors हैं, but ये किस तरह और क्या करते हैं और वो किस तरह का influence और effect होता है, उसके लिए we use Porter's 5 forces. Right, Porter's 5 forces के लिए I have a video, but since there is no audio, then what will we do? Let me try and match the mic with the thing. Right. Your ability to make a good profit in business depends on the strength of your position in the market. For instance, are there any competitors offering similar products? Is it easy for other organizations to enter your... What I'll do is I'll share Porter 5 वाली और ये जो videos है ना, I'll share their YouTube videos so you guys can go and watch them. ठीक है, essentially, but when we talk about Porter's 5, so what we are seeing is कि वो forces क्या हैं इस जो specific किसी चीज़ की market को influence कर रही हैं, और बहुत बड़ा उसके अंदर factor है obviously competitors का, जो sellers हैं और buyers का भी influence आता है. But here we're looking at दोनों के अंदर वो क्या forces हैं sellers और buyers के अंदर, ठीक है ना, जो influence और effect करेंगे किसी specific चीज़ की market को. Right? So in the center of all of this are the competitors, right, who are competing to sell, to say कि जी our solution is the best one for your problem, right? So they're trying to align the conversation or their message to sound closest to what their ideal big majority customer की market का मसला कोई है, ठीक है ना. गर्मियाँ आ गई हैं, प्यास बड़ी लगती है, कोक से प्यास बचाओ, पेप्सी मारी प्यास मारे, ठीक है ना. So they try to align themselves closer to their biggest market. So what are the 5 forces? Rivalry of existing competitors, which is at the center. Then there is the threat of new entrants. कितने आराम से कोई नया आके वैल्यू को प्रपोज कर सकता है. इसके अंदर कंसिडर होता है बैरियर्स टू एंट्री क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितनी है, ब्रांड लॉयल्टीज किस तरह की हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हैबिट चेंज करने की क्या कॉस्ट होगी, इस तरह की चीज़ें. अच्छा, ये है नए एंट्रेंट्स आ गए, यानी नए सप्लायर आ गए.
दूसरी साइड जो नीचे वाली साइड है उस पर यह है कि थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अगर कोक थोड़ी सी महंगी होती है तो लोग क्या पेप्सी पे आराम से शिफ्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिक कितनी है या डिमांड इलास्टिसिटी क्या है दोनों प्रोडक्ट्स के बीच के अंदर, किसी दो सब्सटीट्यूट्स के अंदर, और नए कंपेटिटर्स कितने आराम से आ सकते हैं, कितने प्रोडक्ट्स नए अवेलेबल हैं, स्विचिंग कॉस्ट उसकी क्या होगी, राइट। सो दोज आर द टू टॉप और बॉटम वाली फोर्स on this central force which is the rivalry among the competitors. The four on the side make the center wali cheese to move, and on the two sides right और left पे अगर आप देखें तो एक बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कितनी है और दूसरा बायर की कितनी है, ठीक है ना। बहुत महंगा प्रोडक्ट है, लेट इट गो, ठीक है। पेट्रोल तो मुझे चाहिए ही चाहिए कि गवर्नमेंट जितना महंगा कर दे, ठीक है ना। सो ये भी दोनों साइड से हम पढ़ते हैं। इसके लिए when I share a video and you can also look up another couple of videos, this will get clear. I want you to keep a basic idea, और जो सिंपल ये माइंड में आता है इन नोट्स को देख के just fill this in for your business and let's discuss those when we get together. अच्छा, all where SWOT and PEST and Fortress 5 are somewhat now part of ट्रेडिशनल बिजनेस इन द सेंस 20-30 साल से ज़्यादा हो गए उस टूल्स को यूज़ होते हुए, राइट। सो दे आर एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस और वो स्टैंडर्ड है, हर एक को पता ही करना है और सब करते हैं, राइट। जो लीन मेथोडोलॉजी है उसके अंदर स्पेसिफिकली जो बिजनेस मॉडल कैनवस है वो अब ये 10-15 साल पुराने कैचिंग अप, नाउ इट्स इन इट्स chasm, ठीक है ना, गोइंग इनटू इट्स अर्ली मेजॉरिटी आई थिंक। इसी तरह लीन डिज़ाइन के अंदर एक और टूल है जो कस्टमर की नीड कितनी है सही उसका बेहतर व्यू करने के लिए यूज होता है, विच इज कॉल्ड द वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस, राइट। इसके अंदर द कस्टमर इज सेंट्रल एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द कस्टमर्स वांट्स एंड द नीड्स, और सब्स्टिट्यूट्स क्या अटैच्ड है कस्टमर के पास, और उसके वो फियर्स क्या हैं जिनको वो एड्रेस कर रहा है, जो उसकी वांट्स और नीड्स के साथ भी अटैच्ड है, राइट। वो इन वांट्स और नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है या कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसमें सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस कैसा आता है और वो एक्सपीरियंस के पीछे उसको क्या बेनिफिट्स और फीचर्स मिल रहे हैं जो वो परसीव कर रहा है, जिसकी वजह से वो फील करता है कि मेरा ये सारे वांट्स, नीड्स और फियर सेटिस्फाई हो रहे हैं अबव द अदर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना। तो हमारे प्रोडक्ट के लिए हम अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करके वांट्स, नीड्स और फियर स्टार्ट करते हैं, मैप करते हैं, फिर हम एक्सपीरियंस डिफाइन करते हैं कि उस कस्टमर का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा होगा, विच इज गोइंग टू हैज टू बी बेटर देन अदर सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, अब ये मैं जितने कंपेटिटर चार्ट करूंगा ना, मैं उन सारों का ये भर सकता हूँ कि अच्छा जो कस्टमर है, जो इस प्रोडक्ट का कस्टमर है, उसका ये मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस है, ये उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, ये उसको बेनिफिट्स और फीचर मिल रहे हैं, और ये उसके फियर्स और नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हर प्रोडक्ट के साथ मैं ये बना सकता हूँ टू अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर क्या प्रोडक्ट्स और क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट। सो यू सी दिस entrepreneurs के spaces and boards with these lots of walls पे stick ups, lots of these tools, और वो लिखे हुए हैं और उनको चेंज करते रहते हैं। हाँ, Maslow's hierarchy of needs भी अच्छा है to understand, but वो I think that will be going a little deeper। अभी मैं I'm more like entrepreneurial strategy पे as compared to marketing की depth के अंदर। और आज का जो मेन फोकस है that is about competitor analysis, right? As we talked about it कि competitor जो है वो they are central in the forces which exist in the marketplace, जो डिटरमिन कर रही हैं कि कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन या उनकी डिसीजन मेकिंग कहाँ जा रही है, राइट। And there are a bunch of techniques to do the competitor analysis. The main one, let me highlight here, the main one is the competitor analysis table, which I will ask you to fill up. But ये बाकी और भी जो tools हैं, they're very advantageous, and आप देखेंगे कि क्या इनका फायदा आपको, मतलब it's somewhat apparent, right? So when we talk about competitor analysis, the first thing we need to do is obviously figure out who our key competitors are going to be, right? और obviously फिर इसमें potential entrants नए क्या आ रहे हैं, what is the mint distinction, यानी कि वो क्या चमकती हुई वो चीज़ है, ठीक है ना, जो कि उनके एडवांटेजेस हैं या उनकी
डिफेंसिबिलिटी है कि वो कहते हैं नहीं ठीक है ये मसला है लेकिन फिर भी जो है हमारे प्रोडक्ट ठीक है. ठीक है. So when we talk about comparative analysis, what we do is first we need to identify our competitors. We analyze our competitors. We analyze the information, breaking it down in categories, and then we benchmark ourselves against the competitors. और अभी जो मैं आज आपके साथ टूल शेयर कर रहा हूँ वो essentially are part of this first step process. ठीक है ना. Once you have the slides, you can read the specific questions, but generally, obviously, identify your customers, analyze them, analyze the information which we're gathering, and then strategize accordingly. ठीक है. So as we talked about it, market position क्या है, share किसका क्या है market के अंदर, ठीक है ना, और फिर strengths और weaknesses उनकी क्या है. One key point here is to plan this out. ठीक है ना कि हम मैंने ये कंपेटिटर्स किए हैं, चार्ट इतना टाइम में लगाऊंगा, इसको पढ़ने में इतना इतना इतना, इस टाइम तक मेरा ये एनालिसिस पूरा होगा, इस वक्त मैं उसके ऑब्जेक्टिव नॉक डाउन करूंगा, इस वक्त कैटेगराइजेशन करूंगा, इस वक्त एनालिसिस करूंगा. सो हैव अ स्मार्ट गोल वंस डूइंग दिस. डोंट लीव दिस इन द एयर कि अच्छा मैं भी ये कर रहा हूँ. अपने आप को टाइम दें, कंपेटिटर्स को इतना को ये स्टडी करना है, ये स्टडी करना है, देन ब्रिंग द थिंग टुगेदर. सो हैव दैट टाइमलाइन एंड माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ. And because we love visuals, we humans we love visuals, right? So and all of these tools are also मजे के मेरे लिए because they're mapping in this visual sort of a model. So पहली वाली जो हमने बात की, सबसे पहले हम अपने आइडेंटिफाई करें competitors कौन है. Central competitors तीन टाइप के हैं. Direct competitors, potential indirect और potential. ठीक है ना. And this way you can make a chart on one side you have indirect, जो alternate goods हैं, वो people may use your product as an alternate to their product if the other product is not available, which is like a different thing. मतलब हो सकता है वो nappies और wipes हो, ठीक है ना, जहाँ से एक nappies मिलते हैं वहाँ से wipes मिलते हैं, तो वो nappies नहीं है तो wipes नहीं मिलेंगे, maybe. So we break them down to direct, indirect and potential competitors. Then what we do is we make a basic marketing mix for each competitor. ठीक है ना. We figure out किसका product किस type का है, quality का है. Then we figure out कि वो price किसको क्या बेच रहा है, promotion वो कहाँ पे लोगों को बता रहा है कि मेरा ये product है, how are they telling them, where, what, when, how. We figure out कि where is this happening, right? Eventually जो marketing mix है वो market planning का भी tool है. यहाँ पर हम analysis के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. And then we break down the market. ठीक है ना. When we talk about the education market, for example, we can break it down into different segments. And हम वो featuring कैसे करते हैं? It's sort of like our way of how we see a particular industry or space or market. तो मुझे signal का थोड़ा सा message आया. Can everybody hear me still? Yes, sir. Yeah, Okay. I So- can hear. Great. So in a way, if we break down the ed tech industry, right, we can break it down by saying, there are online learning platforms, there's some career development की कर रहा है, कोई tech learning का कर रहा है काम, कोई learning management system बना रहा है, कोई study tools बना रहा है. So all of this comes under the bigger market of the बिल्कुल एक bigger broader term of ed tech. और उसके अंदर भी जो है different markets हैं, सब markets कह लें अगर हम उसको. अच्छा. So now to weigh any product, ठीक है ना. अब हमने मार्केट देख ली, सब मार्केट्स. अब हम आए थे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के विद इन अ मार्केट, राइट. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा कहाँ पे इस सारे के अंदर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस भी कहाँ प्लेस हो रहा है. अभी हम कंपेटिटर एनालिसिस की बात कर रहे हैं. Another tool for competitor analysis, the perceptual mapping, right. इसके अंदर वो 2 एक्सेस है. तो अगर अच्छी क्वालिटी का या बुरी क्वालिटी का है, ज्यादा प्राइस का है, कम प्राइस का है, right? And where are we placed then? How do we see ourselves, or how does our customer see us? So if we talk about chocolate, all familiar with chocolate. So Mars, for example, is a low price but higher, slightly better quality brand. Kit Kat is a lower quality, lower price brand. Ferrero is a high price but mid quality brand. Lindt is the high price, high quality brand.
राइट. हम अपने कंपेटिटर जो हमने आइडेंटिफाई किए, वी कैन प्लेस देम इन द परसेप्चुअल मैप एज फार एज क्वालिटी एंड प्राइस इज कंसर्न्ड. ठीक है, जो स्टैंडर्ड परसेप्चुअल मैप है उसमें क्वालिटी एंड प्राइस आ जाता है. इसी तरह अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू यू एग्री विद दिस अलाइनमेंट? टोयोटा क्या है? टोयोटा क्या है? Toyota is basically an affordable quality brand. पाकिस्तान के अंदर टोयोटा लो प्राइस है, हाई प्राइस है? High price. Medium price. ओके. High होंडा price, क्या है? medium price. होंडा क्या है? होंडा Honda भी Honda high, price range. high हाई price. प्राइस. और क्वालिटी वाइज Medium. टोयोटा क्या है क्वालिटी वाइज? Medium. High. पाकिस्तान में तो मीडियम ही है. मीडियम. पाकिस्तान में high. यहाँ पे कहाँ पे प्लेस्ड है इस वाले मैप पे? आर दे करेक्टली प्लेस्ड आपके ख्याल से? Do you agree with this mapping? No sir. Why not? What do you think is the issue here? They should be in high price. यहाँ पे इशू क्या है यहाँ पे? High price and low quality. क्यों गलत क्यों हुआ? वो जान के किया मैंने? No, it's American based, isn't it? जिसका मतलब क्या हुआ? That market size, like market consumer, or like different market dynamics. Exactly. So we have to be very mindful कि हम किस मार्केट और किन लोगों के लिए ये मैपिंग करके देखना चाह रहे हैं कि उनके परसेप्शन में क्या है. ठीक है ना, किसी के लिए होंडा नहीं एक्सपेंसिव, किसी के लिए है एक्सपेंसिव. इवन विद इन पाकिस्तान अभी जो है देयर वाज सम कॉन्ट्रडिक्शन. आप लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था कि ये लो क्वालिटी है या मीडियम है या हाई है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा कस्टमर कौन है और उसकी परसेप्शन के हिसाब से जब हम ओवरऑल मैप बनाते हैं तो वो हमारे विगिन एक अपने मेजॉरिटी मार्केट के परसेप्शन से बनाते हैं. ठीक है. तो टिपिकल वाला जो है वो यही प्राइस और क्वालिटी के बीच के अंदर मेजर करे और वो उसका मैप करेगा. बट जरूरी नहीं कि सिर्फ हम प्राइस और क्वालिटी में ही रहें. ठीक है ना. वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन हैव अदर मेजर्स व्हिच वी अंडरस्टैंड आर रेलेवेंट टू आवर टारगेट कस्टमर, जो हमारे कस्टमर के लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं. ठीक है ना. फूड के लिए हो सकता है जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस डजंट मैटर, इज वेरी प्राइस इनलास्टिक. प्राइस जो भी आ जाए वो एक सर्टेन खाना है वो बिकता ही बिकता है. ठीक है ना. मे बी इट्स अबाउट फूड टेस्ट एंड हेल्थ फॉर देम. ठीक है ना. सो वी कैन हैव these डिफरेंट मेजर्स ऑन द एक्सेस टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू हमारे कस्टमर की परसेप्शन और नीड्स और द रीजंस के वो क्यों किसी वैल्यू प्रोपोजिशन को सीख कर रहा है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस एंड प्राइस. ठीक है ना. पाकिस्तान के अंदर डिटर्जेंट ब्रांड्स में सर्फ एक्सेल इज कंसिडर्ड हाई प्राइस, हाई क्लीनलीनेस, whereas bonus TriStar is low price and okay cleanliness, a little on the lower side. Ariel जो is very high price but it's not as high cleanliness as Surf Excel. तो ये पाकिस्तानी मेजॉरिटी मार्केट के परसेप्शन के अंदर डिटर्जेंट्स का therefore mapping. And this is how when we talk about in the future, right, ब्रांड जो अपने आप को देख रहा है और हम और उसका कस्टमर जो अपने आप को देख रहा है उसका जो कॉमन चीज है वो एक्चुअली ब्रांड है. ठीक है ना. एंड देन वंस वी हैव दिस मैप देन वी कैन प्लान कि अच्छा हमने अपने आप को यहाँ से यहाँ लेके जाना है. ठीक है ना. हमने हाई कॉस्ट से अपने आप को हाई क्वालिटी और मिड कॉस्ट पे लेके जाना है. हमने ब्रांड परसेप्शन चेंज करनी है. सो परसेप्चुअल मैपिंग इज गुड आल्सो टू हैव एक सिंपल ग्लांस के अंदर. एंड ऑब्वियसली हाउ यू मैप इज अप टू यू कि हाउ यू डिफाइन द मैट्रिक्स ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द ब्रांड्स. ठीक है ना. आपने क्या मॉडल रखा है और मॉडल से देयरफॉर फीचर्स आती हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं जो हमने अभी बात की कि कस्टमर जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके पीछे बेनिफिट्स और फीचर्स क्या हैं जो उसको मिल रहे हैं. सो फीचर्स कस्टमर की परसेप्शन के अंदर क्या बड़े इंपॉर्टेंट है. राइट. सो फीचर्स की मैपिंग करना कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एंड देन ऑब्वियसली उसको हम लेके एक रेडार मैप बना सकते हैं. राइट. देखा होगा आपने जैसे प्लेयर्स के, ये क्रिकेट में हम लोग बड़े फेमिलियर हैं, या फुटबॉल के अंदर प्लेयर के वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कितना फास्ट है, हेल्दी कितना है, ड्रिबलिंग कितनी अच्छी है उसकी. हियर सो वी कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजंस व्हाई द कस्टमर डिसाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके की क्या हैं. इस तरह भी रेडार से मैप करके हम पढ़ सकते हैं कि कौन से कंपेटिटर किस तरफ को ज़्यादा स्लांटिंग है, क्वालिटी की तरफ ज़्यादा है, प्राइस की तरफ ज़्यादा है, किस चीज़ की तरफ है.
ठीक है ना, कस्टमर सर्विस किसी को ज़्यादा अच्छी मिल रही है, ठीक है ना। अब रेड वाले की आप देखें तो कस्टमर सर्विस इज ग्रेट, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्स वाई फैक्टर जो है उस पे भी वो उसका रेड जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, राइट। सो व्हाट आर दोस की फीचर्स जो आपके कस्टमर को मैटर करते हैं, और ये आपको इससे भी पता लगेगा कि दूसरे बिजनेसेस की जो मैसेजिंग है वो कौन सी वैल्यू प्रोपोजिशन अपने कस्टमर को कर रहे हैं, उससे हमें पता लगता है कि वो यही वाली फीचर है जिनके अराउंड वो बेनिफिट पुश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपना, राइट। सो वी कैन आल्सो मैप कंपटीशन की वैल्यू प्रोपोजिशन ऑन अ रेडार। जी आदर। बेसिकली इसका कस्टमर की जो फीचर मैपिंग है या जो नीड्स है उसके लिए हम मतलब वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्या प्रोसेस Understanding the customer is our next session. Today is understanding the market. So please just bear with me. ये इस so like I said in the first session है कि सारा एक घड़ी की तरह है, वो एक चीज सारों चीजों को हिलाती है, बट वो एक आपको ना स्टेप बाय स्टेप सारा समझ के you have to then bring it all together. Eventually this will happen once we एंड में हम अपनी पिच बनाएंगे ना जो फाइनल, वो ये सारी चीजें आपको तब तक पता लग गई होंगी, तो वो सारे कंपोनेंट आप इंशाल्लाह इकट्ठे हिलाओगे, ठीक है ना। अच्छा ग्रेट, थैंक यू। अब जब सो इससे हम बिजनेस की भी फीचर मैपिंग करके कंपेयर कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। हम प्रोडक्ट्स की वैल्यू मैपिंग के उनके फीचर्स की मैपिंग करके वैल्यूज को कंपैरिजन प्रोडक्ट्स की वैल्यू प्रोपोजिशन का कंपैरिजन कर सकते हैं, फेयर इनफ, राइट। एंड फॉर दैट वी कैन आल्सो यूज दिस सॉर्ट ऑफ अ कंपेयर कंट्रास्ट टेबल, जिसके अंदर दो प्रोडक्ट्स हम रख देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कि ये किस तरह डिफरेंट है इससे, ठीक है ना। एक हो सकता है बड़ा साइज में हो, एक छोटा हो, एक कम प्राइस का, एक ज़्यादा प्राइस का है, ठीक है ना। एक जो है वो बूढ़े लोगों के लिए, एक यंग लोगों के लिए, और सिमिलैरिटीज दोनों के अंदर क्या है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को दोनों साइड पे रख के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन ड्रॉ अ टेबल आउट ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। टू आप कंपेटिटर्स लिस्ट डाउन करें ऊपर कॉलम्स के अंदर, एंड यू राइट डाउन के स्ट्रेंथ किसकी क्या है और वीकनेसेस क्या है, सो यू वो टेबल की तरह भी बन जाता है, राइट। दिस ये थोड़ा सा जरा एक हल्का सा खुद से टेबल टैबलेटेड फॉर्म में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का कंपैरिजन है। दिस इज द बिग मेन टूल व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी विल रियली बेनिफिट आउट ऑफ, राइट। और ये करना है आपने अपने बिजनेस के लिए, दिस वन ऑफ आवर केपीआईज एज यू नो, स्वॉट टेस्ट, क्वार्टर 5 और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस, ये तो आई वुड से आर मैंडेटरी। अच्छा, कंपैरेटिव एनालिसिस मैट्रिक्स या टेबल जो है बेसिकली एक साइड पे वो सारे कंपैरेटर्स के उनको लिस्ट करता है और दूसरे साइड पे उनके फीचर्स लिस्ट करता है। तो सम मे हैव अ फीचर एंड सम मे बी मिसिंग अ फीचर। सो बिल्कुल सिंपल अगर होगा येस और नो वाला, सो वी कैन जस्ट टेक अच्छा इसमें ये फीचर है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये नहीं है। We can also give it a rating for every feature कि इसमें ये इतनी अच्छी है, ये इतनी अच्छी है, इतनी है। So you know for example Facebook या Google Maps वो places का एक affordability देता है, वो डॉलर लगा देता है 2-3, ठीक है ना। They're measuring a certain thing कि yes or no, और yes or no के अलावा the intensity of the thing। सिर्फ yes no की अगर एग्जांपल लें, so we have these online news sharing boards, right? So we have Pinterest, Telly, Whitewire and some Be Interest। और इसकी फीचर मैपिंग, सो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा अच्छा ये न्यूज़ जो एक्सेस करते हैं या आर्टिकल शेयर करते हैं हमारे कस्टमर्स यूजर्स आपस में, उन लोगों के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। दे सेड द कस्टमर वांट समथिंग व्हिच इज यूजर फ्रेंडली, व्हिच इंश्योर्स देयर प्राइवेसी, वो कीवर्ड के थ्रू फॉलो कर सकें एक दूसरे को, प्लेलिस्ट से एक दूसरे की फॉलो कर सकें, वीडियोस को बुक मार्क कर सकें, वीडियोस की और एनोटेशन देख सकें, शफल कर सकें वीडियोस को। सो देन यू कैन कंपेयर कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म क्या चीज़ ऑफर कर रहा है और क्या चीज़ नहीं कर रहा, राइट। सो दिस गिव्स यू अ विजुअल ऑफ वेयर इज द रेड इन द ग्रीन, फॉर एग्जांपल। कौन सा सबसे ज़्यादा फिट प्रोडक्ट है, डू यू थिंक, जिसके सबसे ज़्यादा फीचर्स वी कैन सी अ बेनिफिट ऑब्वियसली, राइट। व्हिच प्रोडक्ट वुड यू गो फॉर? इज यूजर फ्रेंडलीनेस इंपॉर्टेंट टू यू, इज और privacy important to you, or keyword following, right? आप कौन से के लिए ऑप्ट करेंगे?
सर प्राइसिंग प्राइसिंग इधर नहीं है. सो देयर कस्टमर्स, ये देखो ना, इन सारों के फ्री कस्टमर है, कोई यूजर को पैसे नहीं चार्ज कर रही है. सो इसलिए प्राइस इज नॉट एन इशू हियर. दैट्स व्हाई देयर इन लिस्ट प्राइस. Privacy, sorry. Okay, privacy. But so that's an important factor. So pin interest और V interest ही हो सकता है. Tele and Whitewire are out for Eliza, right? अच्छा. इस पे we can also break down who's the market leader, who's the number 2, challenger कौन है. एक niche में कौन operate कर रहा है अपना कोई competition, छोटी सी अपनी market जमा के बैठा हुआ है. और उनके इसी तरह फिर competitor 1, 2, 3 जो है लिस्ट करेंगे. दिस इज कंपेटिटर्स के आपस के अंदर, ठीक है ना. दिस टेबल यहाँ पे आप, दिस इज डिफरेंट देन द फीचर्स वाला, राइट. यहाँ पे आप ऊपर देखें वो मार्केट लीडर 3 आइडेंटिफाई हुए हुए हैं कॉलम में, वेयर एज रोज के अंदर देयर आर डिफरेंट कंपेटिटर्स. सो इवेंचुअली ईच सेल के अंदर जाके एक कंपेटिटर दूसरे कंपेटिटर के साथ हम एनालाइज कर रहे होंगे और राइट पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि क्या रीजंस हैं कि ये हो रहा है इस वाले कंपेटिटर के साथ. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ओन बिजनेस है, ठीक है ना, हाउ डज दिस रिलेट टू द मार्केट लीडर, हाउ डज दिस रिलेट टू द चैलेंजर एंड हाउ डज दिस रिलेट टू द निश कंपटीशन. ठीक है, ये वाला मैंडेटरी नहीं, ये आइडिया देने के लिए कि अगर इतना डिटेल हम लोगों ने कंपेटिटिव टू कंपेटिटर एनालिसिस करना हो तो वो भी पॉसिबल है. ओके, coming back to our main comparison, right? So here let's take another example of project process flow management software. ठीक है, मेरे को बिजनेस है, मेरे को प्रोजेक्ट है, मैंने कम्युनिकेशन भी करनी है और प्रोसेस फ्लो को भी कंट्रोल करना है. तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं. गिल्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्लैक एंड सम अदर्स इंक्लूडेड. राइट, इनकी अब फीचरिंग क्या है आप देखें. सबसे राइट पे व्हाट्सएप भी है, राइट. यू हैव WhatsApp, then you have messages जो हमारे Android में मैसेज होता है राइट से, and then we have a chat software. अब ये वाला मुझे frankly speaking आइकॉन भूल गया किसका है. तो anyway, अब इन सारों का हम आपस में एक comparator analysis करते हैं. सर इस टेलीग्राम the fourth one. ठीक है, thank you. जी, थैंक यू. सो इसके अंदर बिजनेस ओरिएंटेड इनकी सर्व कस्टमर है या इनका कंज्यूमर है. गिल्ड का बिजनेस और इंडिविजुअल प्रोफेशनल है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी बिजनेस है, स्लैक का भी बिजनेस है, वेयर टेलीग्राम, मैसेजिंग एंड व्हाट्सएप आर कंज्यूमर बेस्ड. राइट, मार्केट इनकी कौन सी है, बिजनेस मॉडल इनका क्या है, पेड है, ऑलमोस्ट पेड है, प्रीमियम, डोनेशन, ग्रांट फंडेड, हाउ आर दे फंडेड हियर, हाउ आर दे फाइनेंस्ड. कॉस्ट इनकी क्या आती है यूज़ की, मेन पर्पस किस लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ यूजर्स क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं, टीम्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ब्रांडिंग किस टाइप की है, लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी कितना है, ठीक है ना, एनालिटिक्स कितने आजकल तक दे रहे हैं, कॉर्पोरेट डैशबोर्ड और कंट्रोल कितना दे रहे हैं हर एक को. राइट, ये मैंने इसीलिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कर दिया सो दैट यू नो गोइंग अहेड यू गाइस कैन आल्सो थिंक अबाउट इफ यू वांट सो यू कैन इंट्रोड्यूस सम बिजनेस टूल, ठीक है ना, अपने मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और वर्क फ्लो मैनेजमेंट के लिए. राइट, तो कमिंग बैक टू इट इन अ टेबल फॉर्म, अगर हमने कंपेटिटर्स को आपस में एनालाइज करना है तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना. स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी उनकी क्या है, ठीक है. एंड अगेन दिस इज टू डू विद द मॉडल, द आइडिया एंड द टीम आल्सो. लेट्स नॉट फॉरगेट द टीम. अभी तक जो हमने सारे टूल्स पढ़े, ठीक है ना, स्वॉट हो गया, टेस्ट, मार्केटिंग मिक्स, they all help us to figure out कि किसकी क्या strengths और weaknesses हैं. अच्छा, so I have included a few other tables as example. ठीक है, here is another one I would like you to look at. So here for example, दो companies के बीच में जहाँ पे competition है तो left most में आप देखें तो profile और competitive advantage है, जो एक तरह से company highlight या summary है कि what is this. Then you have their market information, जो सेकंड आप देख रहे हैं, ठीक है ना. मार्केट इन्फॉर्मेशन में टारगेट मार्केट, मार्केट शेयर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी क्या है. देन यू हैव प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, प्राइसिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं. एंड देन यू हैव देयर स्वॉट एंड के अंदर. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द फॉर्मेट आई वुड लाइक यू टू बिल्ड फॉर योर बिजनेस. और कम से कम 3-4 अपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पोटेंशियल कंपेटिटर्स करें,
आइडेंटिफाई, राइट? इस तरह का करेंगे जिसके अंदर कंपनी हाईलाइट भी हो, मार्केट इन्फॉर्मेशन में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो, स्वॉट इन्फॉर्मेशन हो, और साथ इफ अगले वाले सेशन के अंदर व्हेन वी डू कस्टमर वाली चीज़ें तो वहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट फीचरिंग हम करेंगे वो भी फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से इन्हीं कंपटीशन के को एनालाइज करेंगे कि किससे क्या मिल रहा है इनको। ठीक है, अच्छा अब इमेजिन करें कि इस तरह हमने ना ये वाला कर लिया कि जी ये वाली फीचर्स आ गई हैं, ठीक है। अब डू यू थिंक इस are all features equally important? No. Not always, right? Some features more important than others at times, right? So what और we मार्केट ट्रेंड भी इसको इफेक्ट करता है। मार्केट ट्रेंड इफेक्ट बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली हमने कंपैरिजन करना है, देख के तो देखो, मैं देख रहा हूँ इसकी ज्यादा फीचर्स कम फीचर्स हैं, बट कैन वी पुट सम सॉर्ट ऑफ अ मैथमेटिकल नंबर हियर टू कंपेयर बिटवीन ईच कि किसकी रेटिंग ज्यादा या कम है? बेसिकली वेट्स असाइन करें। Absolutely. So now what we're talking about is हम फीचरिंग करके हम अपने कस्टमर्स को समझें कि क्या चीज किसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम उनको एक फैक्टर दें इंपॉर्टेंस का, राइट? वेट दें एक। So on the rightmost as you see the factor importance, so it needs to total up to 100, and then we will divide कि किसका कितना weight है, right? And then we will multiply and come up with a formula, and once we add तो वो हमें एक मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल टेलकोस के लिए उन्होंने फीचरिंग की, जी फीचर्स वो क्या ऑफर कर रहे हैं कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी टेक्नोलॉजी कौन सी इज इंपॉर्टेंट, द प्राइस इज इंपॉर्टेंट, द सर्विस इज इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग सपोर्ट, रिलायबिलिटी एंड डेटा पार्टनर, राइट? एंड देन दे गिव वेट्स कि जी क्या कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? And then they also gave 1 to 3 rating with 1 to 3 stars for each company, right? And that's how they will come up with a total number on the right, और सारा ऐड होके परसेंटेज के अंदर से स्कोर आ जाएगा ईच के लिए। एंड यू कैन सी कि इस फीचरिंग के हिसाब से, इन वेट्स के assumption के हिसाब से मार्केट की परसेप्शन में कौन सा कंपेटिटर इज द लीडर essentially, right? अच्छा, नाउ सो मोर और लेस ये वाले जो टूल्स हैं, स्वॉट, बेस्ट, ठीक है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल, दीज आर द की वंस व्हिच वी मस्ट लुक एट, ठीक है। स्वॉट के साथ एक टाउज होता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। स्वॉट इज टू रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट, टाउज टेल्स अस व्हाट शुड वी डू, राइट? एंड बट जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू टाउज आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स टेबल, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर आप एक्सेस पे देखें तो कंपेटिटर क्या है, वो या हमारे से वीक है या हमारे इक्वल या स्ट्रॉन्गर है, राइट? ये दो कॉलम बनेंगे ऊपर। लेफ्ट पे जो कस्टमर है, अगर हम प्राइस चेंज करते हैं तो उससे कितना को इफेक्ट होता है कस्टमर पे, ये चीज लिखेंगे। सो ये किन दोनों चीजों को कंपेयर करके मेजर करके हमें इनसाइट देगी, ठीक है, कि हमारे कंपेटिटर, हमारा जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो और उसके जो स्ट्रॉन्गर कस्टमर्स हैं उसका रिलेशनशिप हम अगर प्राइसिंग चेंज करते हैं तो क्या हम वाइप आउट हो जाएंगे अपने स्ट्रॉन्गर कंपटीशन से या वीकर कंपटीशन से, या हम उसको कर देंगे, क्या होगा, राइट? सो इसके लिए भी स्ट्रेटेजी का ये टूल है। सो इफ द कस्टमर कंपेटिटर इज वीकर, और अगर प्राइस रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है हमारे कस्टमर के लिए, राइट, सो इग्नोर इट, यू डोंट नीड टू वरी। अगर कंपटीशन भी वीक है, कस्टमर को पैसों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, you don't need to worry about that competitor, okay? Whereas अगर आपका जो competitor है वो stronger है आपसे, सॉरी ये रिपीट कर दीजिए। हाँ, so okay, so if our competitor is weaker than us, right, और हमारे customer का जो price reaction है वो ये है कि जी it's too costly to shift to you, to the competitor, we don't, और customer हमारे पास, हमारा customer है, ठीक है, इन द केस के जो हम कंपेटिटर है वो वीकर है और हमारे कस्टमर को बड़ा कॉस्टली होता है शिफ्ट करना हमारे से, सो वी इग्नोर द कंपटीशन, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट देम, ओके ओके गॉट इट। ओके, अगर कंपटीशन मेरे से स्ट्रॉन्गर है या मेरे जितना है, ठीक है ना, और कस्टमर को जो है वो
too costly to shift. वहाँ पे we need to accommodate our customer, just give them that little extra. ठीक है, ताकि वो हमारे पास ही रहे, क्योंकि कस्टमर आराम से शिफ्ट ही Basically, करेगा, कोई ना उसके कोई लिए ड्राइविंग फोर्स और रीजन होना चाहिए कि वो शिफ्ट करेगा. सो हमने बहुत ज्यादा अपने आप को भी पुश या मरने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने अकोमोडेट करना है कि हमारे साथ है, और हमने कोई ऐसी चीजें नहीं करनी कि वो भाग जाए. ठीक है, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ कुछ जस्टिफाइबल फीचर्स भी इंक्लूड हाँ, मैं अगर प्राइस इंक्रीज करूंगा और माय कंपटीशन इज एज स्ट्रांग और न्यूट्रल, तो और मेरे अच्छा वो दूसरे केस के अंदर आता है इंक्रीज वाला, ठीक है ना. अगर मैं कॉस्ट इंक्रीज करता हूँ और वो जस्टिफाइड है, ठीक है ना, वो दूसरी बात है. ये नीचे जो लिखा हुआ है, अगर मैं प्राइस चेंज करता हूँ और मेरा कस्टमर ये सोचता है कि जी जस्टिफाइड कॉस्ट है, जी महंगाई तो हो रही है, ठीक है ना, लेकिन क्वालिटी तो इन्हीं लोगों के पास है, ठीक है ना, और कस्टमर वीकर है, सॉरी कंपटीशन मेरा वीकर है, ठीक है ना. सो इस पे अटैक करें. आई नीड टू अटैक, ठीक है. इसमें एक वो भी स्ट्रेटजी होती है कि आप कंपटीशन किल करते थे, वो So, कैसे? okay, killing competition is like, you know, it just isn't in a way. अभी जब संसू वाली भी बात हो रही है, it's not just we who are the actors on this field. People are also, pivoting, working on something. So, competition इस तरह से kill हो गया कि value proposition change हो गई, habit change हो गई, broom आ गया, लोगों ने जो है वो झाड़ू लगाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, you know. बट हो सकता है ब्रूम के आगे वैक्यूम आया, तो अब वो दूसरी कंपनी ब्रूम के बाद मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, ब्रूम से मॉप किया, जो ब्रूम वाली कंपनी थी वो जो है वैक्यूम बनाना शुरू हो गई, तो मॉप छोड़ के लोग वैक्यूम पे चले गए. नोकिया डिड नॉट कीप ऑन इनोवेटिंग, सो दे वर ड्रिवन आउट इवेंचुअली, राइट. सो इनोवेशन इज वेरी की एंड सेंट्रल इन दैट सेंस. अब हमारे लिए भी, और कंपटीशन आल्सो knows to keep on doing this if they have any anyway. So where the competition is very strong and the price reaction of the market is that the cost is justified, ठीक है ना. कास्ट मार्केट समझती है कि हाँ ठीक है महंगाई हो रही है, ये जस्टिफाइड है, और हमारे कंपेटिटर स्ट्रांग है, वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करके हमने रखना है, ठीक है ना, कि हमारे कस्टमर ना भाग जाएं. तो हमें हो सकता है वहाँ और प्रमोशन करनी हो, रीइंफोर्स करने के लिए अपना आप. कोक क्यों बार बार, कोक की इतनी बड़ी कैंपेन है, दे कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन. इवन सर्दियों में वो कैंपेन चलाते हैं, ठीक है ना. दे हैव स्ट्रांग कंपटीशन देयर. उनकी अगर प्राइस चेंज होती है सर्दियों गर्मियों में, तो वो ठीक है जी, कस्टमर समझता है सर्दियों में होती है, ऐसे ही होता है, ये वो, बट दे स्टिल कीप ऑन कीपिंग देयर स्टैंड, राइट. उसमें वो बेशक टैक्टफुली कर रहे हैं, ये ज़्यादा पेन पॉइंट को हाईलाइट करके कि हाँ वाकई इतने ज़्यादा नीड को ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई और टैक्टिक कर रहे हैं इस तरह की. उनकी मार्केटिंग लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है. सर्दियों में वो कुछ सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं, और गर्मियों में ज़्यादा वो फोकस पे प्यास पे करते हैं. Absolutely. And when we talk about marketing strategies, we'll talk about it this cycle. ठीक है ना. Now last thing we want to talk about is using SWOT. So SWOT जो मैंने बात की, strengths, weaknesses, opportunities और threats, ये हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और फिर इसमें करना क्या है, एक्शन एक्चुअली क्या होंगे, ठीक है ना. वो आता है हमारे पास टाउस से. एंड आई विल शेयर अ वीडियो विच वेरी गुड वीडियो, सो आई वुड एनकरेज अ वीडियो, क्योंकि अभी साउंड नहीं है, वरना हम इधर प्ले कर लेते, बट वीडियो एंड में ही है, सो आई कैन जस्ट शेयर इट आफ्टरवर्ड्स. इसके अंदर जो है बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स ऊपर लिखते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स साइड पे लिखते हैं, एंड देन वी मैच देम, ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल, बल्कि लेट्स डू दिस, आई विल गिव 5 minutes टू एवरीबडी, ठीक है ना. आप अपने बिजनेस आइडिया के अराउंड स्वॉट एनालिसिस करें. 3 पॉइंट आपने लिखने हैं, अभी ज़्यादा डीप नहीं जाते. दिस इज एन एक्टिविटी यू नीड टू रिफ्लेक्ट ओवर एंड डू प्रॉपर्ली. सो आप अभी फिलहाल सिर्फ स्वॉट करें, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स. ये 4 चीज़ें आप लिखें, 3 बुलेट पॉइंट अपने बिजनेस और आइडिया के अराउंड, ठीक है ना. आई विल गिव यू गाइस 7 minutes एंड आई विल बी राइट बैक, ठीक है. अभी 13 हुआ है, सो वी विल रिकन्वीन एट 20. अब जब ये आप स्वॉट के अंदर लिखेंगे, मैं आपसे 1-2 एग्जांपल लेके वी विल टर्न दिस रिफ्लेक्शन इनटू स्ट्रेटजी, राइट. एंड वी विल सी कि ये स्ट्रेटजी हमने कितनी इंप्लीमेंट करनी है. ये हमें स्वॉट और टाउस सिखाता है. सो यू गाइस हैव 7 minutes. स्वॉट काइंडली अपने बिजनेस आइडिया पे देख लें.
इसके अंदर ना अपनी वो जो तीसरे वाला है ना वो just, क्योंकि मैं इसलिए चाह रहा था कि आप मुझे एक्सेप्शन जो क्रिएट होगी वो बता दें ताकि मैं जल्दी उसके पॉइंट बता दूं ये कर सकते हैं। ये वाला मैंने आइडिया देने के लिए किया था। थर्ड पॉइंट है ना वो गेन एंड ग्रोथ मॉडल है इंटेंशन बेस्ड। तो पर्सनल इंटरनल अलाइनमेंट पे है जो आप जिसका अपने आप ठीक है ठीक है एम्पैथी पे कर लें अगर एम्पैथी ठीक है मैं क्या ठीक है मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस हाँ ठीक है लीडरशिप और मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस और लीडरशिप आई थिंक राइट ठीक है ठीक है ठीक ओके मैं इसीलिए एक्सेप्शंस पूछ रहा था क्योंकि पॉसिबल इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल दैट्स व्हाई आई वांटेड कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स क्या है सो आई कैन क्योंकि है भी टाइम लिमिटेड है ना और है भी वर्चुअल सो लॉट ऑफ लिमिट्स अगर फिजिकल होता तो वो तो श्योर No, I think the two things that you pointed out is about managing expectations and leadership. I think those are very common ones. So I'll just give me a little bit. Let me finish the session, then I'll send something your way. Sure. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. G, and we are back. Hello, hello. Hanji, are we still here? Are we done? Almost. Sure. Hanji, Zubair, are you done? जी जी ठीक है चलो let's take Zamidar as an example ठीक है ना so let's start with strengths 3 strengths ठीक है She stands for first of all it's a customer centric second one is language sportive third is simple reliable secure and free the weaknesses are not available in whole Pakistan नहीं चलो ये आपने लिखा हुआ है क्या पेपर पे लिखा हुआ है जी जी पेपर दिखा सकते हो मैं कैसे शेयर करूंगा इसको चलो चलो आप या फिर मुझे लिखा दो स्ट्रेंथ्स लिखो मैं एक एक वर्ड में लिख लेता हूँ कस्टमर सेंट्रिक ठीक है और लैंग्वेज सपोर्टिव ठीक है सिंपल सिक्योर फ्री सिक्योर ठीक है अभी के लिए मैं 2-3 ही पिक कर रहा हूँ सर ये भी एग्जांपल के लिए हम कर रहे हैं फिलहाल ठीक है वीकनेसेस 3
नॉट अवेलेबल इन होल पाकिस्तान। नहीं ये लेकिन देखो वीकनेस इन इंटरनल होती हैं। हाँ जी, इंटरनली सिस्टम्स नहीं है, मतलब अभी हम पूरे अच्छा पाकिस्तान में रीच यानी कि जी जी ठीक रीच। है ओके। कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, किस तरह के? कम्युनिकेशन बैरियर कस्टमर टू कंपनी जो री इन्वेंट के लिए कम्युनिकेशन बैरियर है, तो उसके थोड़ी सी वीकनेसेस हैं री इन्वेंशन में। समझ नहीं आई। सर बेसिकली कोई भी आइडिया होता है ना, तो उसको एवेलुएट करके उसके बाद एनालाइज करके फिर ब्रेनस्टॉर्म करके फिर क्रिएट किया जाता है। ठीक है तो इसी तरह इस प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा कम्युनिकेशन बैरियर है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं, जो लोकल ज़मींदार हैं, उनको इस सेंट्रिक के पता नहीं है कि कौन से मीडियम जो है ना वो लैंग्वेज चूज़ करें, या फिर अगर वो बेसिक मीडियम में भी यूज़ करते हैं तो वो अगर मैनेजमेंट है वो इंग्लिश या उर्दू ज़्यादा समझते हैं, वो पंजाबी सराइकी नहीं समझती। तो दैट्स मीन इन दैट सेंस के कम्युनिकेशन बैरियर है लैंग्वेज बैरियर है जी। ठीक है। लेकिन ये अ, जो लोगों का ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, ये आपके बिजनेस से लेने देने इसका क्या? ठीक है। और मैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है कि अगर इन अर्ली स्टेज पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स ले आते हैं और हमारे पास दूसरी साइड पे क्लाइंट्स ही नहीं है, तो मैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आ जाएगा कि हमारे पास अ, अ, ये इस आप वीकनेस रख के लिख सकते हो बायर साइड, ठीक है जी ना, जी यूजर्स, बायर साइड यूजर्स कह लो। जी ठीक है बायर साइड यूजर मैंने 3 लिख लिए, ठीक है ना। ठीक अब है। एक मैंने लिखा है रीच लिखा है, ठीक है जी ना। दूसरा मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तीसरा मैंने लिखा है ये जो क्या कह रहा था, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं कम्युनिकेशन बैरियर तो एक्सटर्नल है ना, वो तो आपका इंटरनल होनी चाहिए ये, ठीक है ना। हाँ दूसरा तीसरा आपका लिखा है कि बायर साइड के भी यूजर इतने नहीं है, जी। ठीक है। ये 3 लिखिए फॉर एग्जांपल। अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में? अपॉर्चुनिटीज़ में अगर न्यू फंडिंग इंक्रीज हो जाता है, देन वी कैन एक्सपैंड मोर। ठीक नहीं है नहीं सॉरी, ये देखो पहली बात तो नहीं, ये स्वॉट जो हो रहा है ना ये आपके बिजनेस आइडिया के अराउंड हो रहा है, ठीक है ना। सो ओके प्लेटफॉर्म जो सप्लाई चेन को कनेक्ट कर रहा है और वेस्टेजेस कम कर रहा है, फर्क करो, ठीक है। ठीक है। इस आइडिया अब की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके और आपके बिजनेसेस में क्या है, यानी आइडिया की स्ट्रेंथ और आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ, आइडिया की एक्सपेंडिंग वीकनेसेस आपकी पर्सनल वीकनेसेस, ये ओके इंटरनल है। उसके अलावा एक्सपेंडिंग जो आप ये आप कर रहे हो कि सप्लाई चेन और वेस्टेज कम कर रहे हो, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं? उसमें से ये है कि फूड वेस्टेज कम हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज क्या एग्जिस्ट एक्सपेंड करती हैं? ये तो करना जी है, ये तो आपका विजन है, जी ये तो विजन है ना। एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज क्या है जो आपका विजन अचीव करने में मार्केट के अंदर अपॉर्चुन हेल्प कर सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हम मिल सकते हैं, अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट यानी कर कि सकते हैं एग्रो हम बेस्ड है, सर्विसेज हम हैं एग्रो बेस्ड है, जी तो इसलिए यूजर बेस्ड बढ़ा है, ठीक है जी। ठीक है। अपॉर्चुनिटी है दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट लेवल बढ़ सकता है। नहीं, ये आपके बिजनेस वेस्टेजेस का एक्सपोर्ट लेवल बढ़ने से क्या ताल्लुक है इसका? सवाल ये है, समझो स्वॉट स्वॉट क्या है, ठीक है ना, कि आई आप गेस इनके लिए एप्लीकेबल होगा सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के, सप्लाई चेन के जो आप फंक्शनलिटी है। टेक्नोलॉजिस्ट हो एग्जैक्टली फॉर, लेकिन वो हाँ इंटरनल स्ट्रेंथ है अगर आप एक टेक्नोलॉजिस्ट हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या एग्जिस्ट करती हैं मार्केट के अंदर जिनको आप लेवरेज कर सकते हो अपना मिशन सक्सेसफुली करने में, ठीक है ना। सो अपॉर्चुनिटीज आपकी फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हैं, एग्रो बेस्ड यूजर है, ये है कि जी पॉलिटिकली इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट है कि जी एग्रीटेक को प्रमोट करें, ठीक है जी ठीक है, ये हो सकती है। जी सर। ऐसे ही है जिस तरह वो 10 मिलियन ट्रीज वाला सो एक कैंपेन एक्सटर्नल चला दिया फैक्टर्स था, क्या, ऐसे एक्सटर्नल ही है फैक्टर्स आपको याद हो हमने जो पढ़ा था, पेस्ट पेस्ट पढ़ा था ना, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जी 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 सोशल और टेक्नोलॉजिकल, उससे आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात है सारी, जी सर। ठीक है। सो उससे और आप निकालोगे अपॉर्चुनिटीज, किस पेस्ट में से कौन सी चीजें आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन सी आपके थ्रेट्स हैं बिजनेस के लिए। थ्रेट क्या है? ठीक है, थ्रेड्स में आरती, पॉलिटिकल लॉज चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट चेंजेस कुछ इस तरह के आ सकते हैं जिसमें वाटर बस शॉर्टेज ठीक हो है, ये हो सकती गया, है। ठीक है ना। अब ये 3 मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। वो आरती शायद मोनोपोली लिख ली है मैंने, जी मोनोपोली मोनोपोली क्रिएट हो स्लैश सकती है, माफिया, नहीं नहीं है बार्गेनिंग जो पावर हो जो है ना वो सकता है, बढ़ नहीं सकती मेरी है। बात नहीं सारे प्लीज देखो, ऐसे हो सकता है, दैट इज एन assumption, सुना है ना, assumption इज द मदर ऑफ ऑल। सो assumption नहीं लेनी, हो सकता है नहीं, हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। अभी भी जो अगर स्वॉट करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज ऑन पेपर, नॉट व्हाट शुड बी और व्हाट कुड बी, व्हाट इज,
ठीक है, what is internally strength and weakness, what are the external opportunities and threats which will affect our idea or are doing this business, ठीक है ये। अच्छा, अब मैंने जो आपके 3 स्ट्रेंथ्स लिखे हैं, 3 वीकनेसेस, 3 अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना, वो स्वॉट वाले टेबल वाले फॉर्मेट में। अच्छा, अब इसको हमने जब अपॉर्चुनिटी, इसको हमने टर्न करना है ना इनटू टाउस, तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ्स हैं वो ऊपर लिखेंगे जैसे आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। और थ्रेट्स जो है हम लिखेंगे लेफ्ट पे और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर हम मैच करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जो हमारी वीकनेसेस हैं और थ्रेट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी वीकनेसेस और थ्रेट्स देखते हैं। हमारी वीकनेसेस हैं कि जी हमारी रीच कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टली बड़ी है और बायर साइड के यूजर कम है, ये हमारी वीकनेसेस हैं। इनको हम मैच करेंगे थ्रेट से। थ्रेट्स क्या है, मोनोपोली है, माफिया है, लीगैलिटीज का इशू है, क्लाइमेट का इशू है, ठीक है। इन दोनों के लिए नाउ वी हैव टू पुट ऑन आवर थिंकिंग कैप्स कि इस रीच अगर हमारी लिमिटेड है और माफिया बना हुआ है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत हाई है और रीच हमारी कम है और जी माफिया बना हुआ और लीगैलिटीज का भी पता नहीं क्या होगा, सो हम क्या वो एक्शंस कर सकते हैं कि हम अपना रिस्क मिनिमाइज करें, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लें, बताएं मुझे, अगर रीच कम है, थ्रेट्स जो हैं वो ये हैं कि जी मोनोपोली और माफिया है और क्लाइमेट से भी बड़ा कुछ खराब हो सकता है, तो किस तरह हम इस वाली सिचुएशन के अंदर अपने रिस्क मिनिमाइज करेंगे। हो सकता है कि हम स्टोरेज जो है वो स्पेसेस फार्मर्स को बनवा के देना शुरू करें, उससे हमारी, जब हम ये करेंगे तो फार्मर्स हमें अट्रैक्ट होंगे कि जी हमें भी स्टोरेज स्पेस बना के दो। इस तरह हमारी कस्टमर रीच ऑर्गेनिकली शायद वो हमारे पास आना शुरू हो जाए, स्ट्रेट हम उनकी तक जाएं, वो वर्ड ऑफ माउथ बड़ा फैलेगा, उसकी वजह से भी हमारी तरफ ट्रैक्शन आ जाए, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाए क्योंकि अब वो फार्मर विलिंग है थोड़ा सा पे करने के लिए फॉर अस टू कम टू देम, ठीक है। और जब हम ये डायरेक्टली करते हैं तो जो माफिया और वो है उसको हम बाईपास कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं जी हमारा तो आपसे देना कुछ नहीं, हमें तो उसने बुलाया। हाँ, लीगल इश्यूज भी क्योंकि है, सो वी नीड टू मेक श्योर कि जी हम कोई लॉबिंग इस तरह की क्रिएट करें और अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करें कि ये कितना बड़ा मसला है। ये अब एक्शन स्पेसिफिक जो हम ले रहे हैं अपनी रीच कम होने, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा होने, माफिया बने होने और लीगल क्लाइमेट की वजह से, या फिर क्लाइमेट स्टोरेज बना दिया तो क्लाइमेट का थ्रेट भी खत्म हो गया, ठीक है। लॉबी की तो लीगैलिटीज के रिस्क हम मैनेज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ भी दे रहे हैं, समझे। सो ये वाली आती है हमारे सबसे, ये वाला जो आइडिया है ये हम लिखेंगे टॉप लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर, जहाँ WT वीकनेसेस एंड थ्रेट्स के अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लेना है वहाँ पे WT में लिखेंगे, ठीक है। ये रिस्क मिनिमाइजिंग स्ट्रेटजी है, इसको हम कम से कम भी इम्प्लीमेंट करेंगे अभी, क्योंकि ये हमारी वीकनेसेस और हमारे थ्रेट्स भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बस अभी साइड पे रखते हैं क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज करना है और रिस्क को कम करना है, ठीक है। इसी तरह आ जाते हैं हमारे ST यानी कि मैक्सी मिनी स्ट्रेटजीज हमारी क्या होंगी। अच्छा, ये जो मैक्सी मिनी लिखा है ना, ये लेवल की बात है, ठीक है, मिनिमम लेवल के ऊपर एज कम्पेयर टू मैक्सिमम हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है। आप वीडियो देखेंगे आप उसमें के अंदर भी अच्छा फर्दर समझ आ जाएगा, एग्जांपल्स भी होंगे उसमें आए होते हैं। अच्छा, सो अब क्या हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और थ्रेट्स क्या है और वो हम क्या एक्शन ले सकते हैं अपना रिस्क कम करने के लिए। हमारी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि जी हम कस्टमर सेंट्रिक हमारे डिज़ाइन है, लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और सिक्योर सिस्टम है हमारा। थ्रेट यही है कि माफिया है, लीगैलिटी का नहीं पता और क्लाइमेट का नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। एनीबडी कैन हैव एन इनपुट इनटू दिस, ये हमारी एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। सो जस्ट टू रिफ्रेश, जमींदार जो है वो फार्मर से कॉर्पोरेट्स या मार्केट तक डायरेक्टली गुड्स पहुंचाने, ऑटोमेटिकली क्रॉप खरीद लेना, पे भी कर लेना, बाय कर लेना, वो कर रहा है, राइट। सो उनकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन है, लैंग्वेज बहुत सारी में सपोर्ट है और सिक्योर सिस्टम है। थ्रेट्स उनको ये है कि जी माफिया है, लीगली भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और क्लाइमेट की वजह से भी क्रॉप खराब हो जाता है, तो वो क्या ऐसे एक्शन ले सकते हैं कि इन रिस्क को मिनिमाइज करें, इन स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए इन थ्रेट्स को मिनिमाइज करें। इसमें ये
सकता है कि क्लाइमेट चेंजेस को ओवर करने के लिए उसमें ये हो सकता है कि हम एपीआईज यूज़ करना चाह रहे हैं, वेदर की एपीआईज यूज़ करना चाह रहे हैं और फार्मर्स को सीधा टारगेट करें कि वो इस वेदर क्लाइमेट के चेंजेस के हिसाब से ये चीज़ें बहुत अच्छा जो है ना सो उसको वो harvest कस्टमर करें। सेंट्रिक डिजाइन में उसके मसला ही जो चीज सॉल्व कर रही हो, जो उसकी लैंग्वेज में भी है, ठीक है, एग्जैक्टली सर, जो उसको सिक्योरली और सिक्योरिटी भी दे रही है, सेफ भी रख रही है उसको, ठीक है ना, एग्जैक्टली क्लाइमेट के अगेंस्ट, इकोनॉमिक लॉस के अगेंस्ट, क्रॉप के लॉस के अगेंस्ट, ठीक है। वो उसको इस तरह भी एम्पावर कर रही है कि वो कहे कि जी मुझे ये प्लेटफॉर्म एम्पावर करता है, सो इसको लीगैलिटी दें आप, आई वांट दिस टू कीप ऑन हैपनिंग। एग्जैक्टली हमारे थ्रेट्स भी मिटिगेट हो रहे हैं इस एक्शन से। वो फार्मर खुद कह रहा है कि जी मैंने इनसे कनेक्ट होना है, सो माफिया को वो इसकी बजाय माफिया आके उसको ओवररूल कर दे, वो उसको इतनी इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है कि वो कहता नहीं मैंने इन्हीं के पास आना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस एक्शन की वजह से हमारे स्ट्रेंथ्स यूज करते, लेवरेज करते हमारे थ्रेट्स मिटिगेट हो जाएंगे, ओके। इसी तरह कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको हम कवर करेंगे अपॉर्चुनिटीज यूज करते हुए, रिस्क कम करेंगे और या फिर हम रिस्क कम करेंगे अपनी वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज को सामने रखते हुए। वीकनेसेस हमारी वही रीच, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रीच बहुत कम है, और बायर साइड अभी हमारी छोटी है। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि एग्रो बेस्ड यूजर बहुत ज़्यादा है और एग्री टेक बड़ा सपोर्ट हो रहा है। सो मे बी हम जाके इसी तरह कंपनीज के पास जाके हम उनके थ्रू और कंपनीज के अंदर नेटवर्क और बिल्ड कर सकते हैं, ताकि हमारी वर्ड ऑफ माउथ और ब्रांडिंग हम अच्छी कर लें, ताकि हमारी रीच एक बल्क यूजर में भी बढ़ जाए, कॉस्ट ऐसे लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट भी कम हो जाए, जो ऑलरेडी लोग कुछ कॉस्ट उठा रहे हैं, प्लस ये जो एग्रीटेक के अंदर सारी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट कह रही है बहुत ज्यादा, तो इनके नेटवर्क्स यूज करें कॉर्पोरेट तक अपना वर्ड पहुंचाने के लिए, सर्विस पहुंचाने के लिए। दैट कुड बी एन एक्शन व्हिच helps us to overcome our weaknesses by leveraging the opportunities, right? This is a mini maxi strategy, ठीक है, जो हम मिनिमम लेके उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। देन वो कौन सी स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम दोनों को अलाइन करके वी कैन मेक द बिग बैंग। हम कस्टमर सेंट्रिक हैं, हम लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं मल्टीपल, हमारे सिक्योर सिस्टम है और सिक्योरिटी देता है फार्मर को, एग्रो बेस्ड यूजर बहुत ज्यादा है और एग्रीटेक का बहुत ज्यादा बोलचाल है। व्हाट कैन वी डू कि हम स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज को यूज करके अपने बिजनेस को फर्दर मैक्सिमाइज करें, अपनी स्ट्रेटजीज के आउटपुट्स मैक्सिमाइज करें, ठीक है। एंड अगेन ओवर टाइम यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस मिक्सेस वन बाय वन एंड थिंग्स विल पॉप अप एंड राइट देम डाउन प्लीज। मैंने पिछले वाले में भी जो रिक्वेस्ट की थी कि आप ये कलम का साथ पकड़ ले, कलम बड़ा साथ देगा आपका, ठीक है ना। जहाँ जो चीज़ याद आती है, अब तो फोन भी कलम है ना, उसमें लिखें ये वाली चीज़ें, देन कंपाइल देम, बिकॉज ओवर टाइम लीनियर थिंकिंग, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, सारी चीज़ एक वक्त में कैप्चर नहीं होती, इसीलिए ये डिज़ाइन टूल्स जो हैं वो इन स्नैपशॉट आ रहे हैं सारे, सिंपल करके बिल्कुल। So here we go, right? So strengths and opportunities with use of internal strengths to exploit external opportunities, right? For strengths and threats, we use the internal strengths to avoid or minimize the impact of external threats. Where we have weaknesses and we will see the opportunities, we will overcome internal weaknesses by exploiting external opportunities. And we can match our weaknesses and threats to overcome internal weaknesses and minimize external threats. Okay, and this is something like what a Taos would look like: strengths upar, weaknesses upar, and opportunities and threats on the side, and then we match them. So, for example, if a company has excellent technical skills, but their founder is only a salesperson, not a technical person, is the only salesperson. Opportunities are growth for mobility first. There are threats that cheaper foreign competition taking existing customers, right? So, iske andar what will it do is they will use their strengths and opportunities and position themselves as experts in mobile first. Right? They will show on the perception map they will want to be like somewhere up there. Perceptual map जो हमने बात की थी, उसमें आप फिर एक्सेस पे क्या डिफाइन करें ये देखिए। So what they can do is they can use
the opportunities to overcome their weakness by hiring a salesperson focused only on mobiles. Right? That way they will grow, and at the same time he will not be the only salesperson in the company. Then he can use the strength of having this technical skill to overcome this incoming cheaper foreign competition by outsourcing non-high risk work margin. है ना, फालतू चीजें आउटसोर्स कर दो ताकि चीपर हो जाए चीजें. And they will overcome their weaknesses and their threats by hiring or use a founder to focus on existing customer relationship management. Right? So वो अपना customer base को retain कर करके और grow करें. Because there's only one salesperson and this threat के जी बाहर के और लोग आ जाएंगे, competition आ जाएगा और customer ले जाएगा. So वो customer जो है उसको build करके रखें using the tool which they have, which right now the scale is the salesperson, which is the founder. Right? And here is a video of Sword and Towels, which I shall share later. But I think for now we're good. I think we've covered quite a bit. Lots of food for thought, lots of things to do. I hope this session has helped everybody to, you know, align or have this idea कि जी ये lens है जो step by step हम use करके बहुत अच्छे analysis कर सकते हैं, and we can be confident कि जी what we're doing is going to be of practical effect. Thank you. Okay. Achha. So thank you everybody. Any questions? Any thoughts? Feedback? अभी से पिछले वाले से. लिंक्स अभी शेयर कर देंगे तीनों. लिंक्स और प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए. प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ. जो लिंक्स है वीडियोस के वो भी प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियोस आल्सो. डू योर स्वॉट, डू योर टाउस, डू योर कंपेटिटर एनालिसिस टेबल. ये तीनों चीजें तो मस्ट है ना. पेस्ट भी, क्योंकि पेस्ट से आपके निकलेंगे अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, राइट, और स्वॉट से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निकलेंगी. जो ओवर टाइम ग्रो भी करते हैं. So okay, yes, for each business, right, ये strategy का tool है, right, और strategy आपकी हो सकता है overnight आपको change करनी पड़े, हो सकता है आप quarterly कर रहे हो सकता है annually कर रहे हो सकता है एक level पे आप annually कर रहे हो, एक level पे आप quarterly कर रहे हो, एक level पे daily कर रहे हो. ठीक है ना. So this is about business management running. क्योंकि कल पे इतनी बात छोड़नी ना, things are now as they are, and if we are reflecting them in these tools, तो ये अभी का हमें perception देगा, जरूरी नहीं ये कल का दे रहा हूँ. And the action which we've therefore इसके ऊपर हमने define किया वो भी needs to be taken out immediately. So the takeaway here is, right, like let's build, let's understand, let's build, जो हमने पहले बात की थी, to analyze, to build, then to read or get the measure कि जो हो क्या रहा है, and then to learn and to keep on rebuilding. ठीक है ना. milestones, assumptions test करते करते, test often, test simply. ठीक है ना. बेसिक चीजों को टेस्ट करना, सबसे जितनी जल्दी आप टेस्ट कर सकें आप assumptions टेस्ट करें. अब assumption testing गूगल कर लें. we don't have a critical thinking actually module here, लेकिन assumptions जो हैं वो किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, मैं इसको बड़ा सिंपल कर दूं. So assumption is जो given facts होते हैं ना, कोई भी statements होती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम सपोज कर रहे होते हैं कि जी these things are this way, so this will happen. तो जो सपोज कर रहे हैं चीजें वो assumptions हैं, उनकी टेस्टिंग लाजमी है. ठीक है ना. और assumptions और milestones हम रख के assumption टेस्ट करेंगे, वो डिस्कवरी ड्रिवन में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है. बट assumption टेस्टिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के कंपोनेंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के. ठीक है ना. या यू कैन सी इसमें एक प्रेमिस होता है जिसके बेसिस पे एक कंक्लूजन या क्लेम ड्रॉ हो रहा होता है, उनका लॉजिकल कनेक्शन होता है, फिर उसके बेस के पीछे एविडेंस होता है व्हाई they're claiming something to be so, what is the evidence behind, background statement होती हैं, counter claims होते हैं. ठीक है ना. फिर assumptions होती हैं, implied statements होती हैं, background statements होती हैं. critical thinking का एक method है. but here we just need to keep in mind कि जो हम assumptions लेते हैं ना कि अच्छा ये ऐसे हो या शायद ऐसे हो जाएगा या ये शायद ऐसे है, we need to validate कि ये वाकई ऐसी चीजें, to have that realistic step by step learning based methodology of entrepreneurialism or development to happen. ठीक है. Great.
ठीक है, चलें, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो आई विल लेट यू गाइस गो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वी विल कैच यू सून, आई विल कैच यू सून एंड प्लीज अपने वो फिल करें शीट सो दैट वी कैन कैरी ऑन इन द नेक्स्ट सेशन, द एडवाइजिंग सेशन, एंड नेक्स्ट वीक इज गोना बी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर व्हिच इज द अदर हाफ ऑफ दिस मार्केट रिसर्च फॉर मॉड्यूल्स। अच्छा, ये जो वर्क है मतलब SWOT एनालिसिस वगैरह, ये हमने आपसे शेयर करना है जो हमारा नेक्स्ट सेशन है आपके साथ, राइट? हाँ, एडवाइजिंग के अंदर ना bring them, look whatever you bring we are working on that, this is your pace, हमारे वाला जो कोर्स का पेस है वो तो है ही है, the expectation is कि you will match with the flow, ठीक है ना, with many people, Yeah. but if you do it quickly तो आपको पता है कि मैं कुछ चीजें फिर ahead भी mention कर देता हूँ so that you don't get stuck, once we actually get there तो you will have, even have a deeper understanding, that's my take on things, inshallah. ठीक है, Thanks a lot. चलो, thank you, my pleasure, so thank you everybody, thank you, take care, Allah Hafiz, stay safe.